Okay. So in the last class, what we have discussed how the scope of administration has been changing from the time of Woodrow Wilson to the post globalization era. Okay. So briefly, we have discussed how the scope has been changing, how it has moved from welfare state to corporate state and to the corporate welfare state in the contemporary time. Because in 1960s, what we have seen in 1950s, we have seen the development of welfare increase in the activities of the state. So before that we had a laissez-faire state, before 1929 economic depression. And in 1929 it was realized, a state will have to interfere, a state will have to take up many of the public welfare activity. There was engagement of state enterprises. So as a result, what we have seen by 1950s and 60s, there was dominance of public sector undertaking in the activities or in providing goods and services. So as a result, what happened, and a state has taken a lot of loans with the loans from the international agency. There was a lot of expenditure by the state, but the state have failed in terms of managing the resources efficiently. So there was a lot of fiscal. There was two major type of crisis that we say. One was fiscal crisis, and other was legitimacy crisis. These are the terms you can use in the answers also. These two crises has happened during 1950s and 60s. So as a result of development administration was there, it was bureaucracy led, it was public sector undertaking that was taking up all the activities in 1950s and 60s. It has resulted into failure, and they have taken loans from the international agencies. And later on, the agencies like World Bank and IMF, they realize it is not possible to recover the loans from these states who are failing in terms of earning the taxes or whatever resources they can raise. So as a result, they started putting the aid conditionality. By 90s, we see there are a lot of aid conditionality by the international agencies, what that we say as a structural adjustment program or aid conditionality or good governance measures. So this was World Bank and IMF. They have come together in the Washington, and they decided to put some condition, है ना. जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस, अगर किसी दोस्त को या फैमिली या रिलेटिव को अगर आप पैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग मनी 12 lakh 20 lakh or 1 crore to somebody, and if he is wasting all the money, then you will be very cautious. अरे यार उसको पैसे दे रहे, whether he will be able to return it or not. So you start putting some condition, whether you look at the condition of the individual, whether will you be able to repay the loan. Same the situation is being repeated with the Sri Lanka and Pakistan in the contemporary time. Okay, same aid conditionalities are being imposed on Pakistan and Sri Lanka in the contemporary time. That was the situation in 90s in the many of the developing country, including India. So they have called it as a good governance measure. And later on, by 2008 economic crisis, we realized state as a regulatory agencies have also failed. So in 1990s, it was an era of kind of neoliberalism. So but a state market has also failed by 2008. Then we had to look for we have to a lot of thinkers who have been talking about bring the state back in. That means a state should take up the welfare activities. So that is the whole idea that we have discussed from Woodrow Wilson to contemporary time, brief idea. And same things are going to be repeated in the topics that we have given. For example, we'll take up some of the. So liberalization is withdrawing the control, freeing the market, opening up the market, or making the state limited in their activities. So liberalizing everything, making the private sector participate in the economic activity. So basically, it is a contemporary development. Both, so it will impact both discipline and practice. How discipline में क्या होगा? जितने भी theory और principles develop होते हैं, they will be impacted. The kind of nature, for example, rollback of the state, you know, of the state. That was the idea. And most of the theories have started developing in terms of कि कैसे state को withdraw करें, है ना, market का role कैसे बढ़े, regulatory agencies कैसे हो. So there was a lot of research in the public administration with regard to the how the market could be regulated in a efficient manner. There should be arm's length, hands-on management. These are the terms that are used in the 90s era. So new wave of managerialism that we have seen in the form of new public management, public choice approach, new right philosophy. All these are terms which are that talks about market-based reform, market-based economy. In the practice also we see a lot of Reaganism, Thatcherism that we have seen in the Western countries. Similarly, India, we have the LPG reform in 1991. So these were the set of reforms that has impacted public administration in terms of
practice, and both theoretically and practically we see. So early, administration has started becoming flatter and outward looking. So this phenomena has led to democratization, free movement of goods and services. All the GS content also, you can use this content in the GS also, and GS content could be also be utilized here. ओके तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स हो गया. अब डिसिप्लिन और दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है. कंटेक्स्ट क्या, कंटेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया ये सारे कंटेक्स्ट. थ्योरी में क्या क्या, पब्लिक चॉइस अप्रोच, नियो राइट फिलोसफी, रेगनिज्म, थेचरिज्म क्या था, प्रैक्टिस में आ गया है ना. उसके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो एड कंडीशनैलिटी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो बाय वर्ल्ड बैंक, IMF है ना, इसको वाशिंगटन कंसेंसस भी बोलते हैं. तो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट. सो इन द इंट्रोडक्शन, स्पेशली इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन मेंशन द कॉन्टेक्स्ट. ओके तो इसमें क्या, न्यू लिबरल फिलोसफी है, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस हो रहा है, कई सारे रिफॉर्म्स मेजर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स लिए जाएंगे अंडर द एलपीजी का डी कंट्रोल करना या डी रेगुलेट करना, स्टेट शुड विड्रॉ है ना, रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शंस लाइक द लाइसेंस परमिट कोटारा. जीएस में जो हम लोग पढ़ते हैं, लाइसेंस परमिट कोटारा से हम लोग है ना, ओपननेस या रेड टेप से हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, रेड टेप से रेड कारपेट की ओर. दैट इज द टर्म यूज्ड बाय द करंट कंटेम्परेरी गवर्नमेंट. Okay, we are facilitating it, bringing the private sector. There is a lot of disaggregation, so that more and more competitors will come. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है ना, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली देख रहे हैं, एक कमीशन भी बन गया, कमिटी भी बन गया. जो चैप्टर पीएसयू जब हम लोग डिटेल में करेंगे, तो अगेन दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी रिपीटेड देयर, हाउ दिस पीएसयू टॉपिक. और हाँ प्लीज सर, रेड टेप टू रेड कारपेट आपने लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया या फिर प्राइवेटाइजेशन के? हाँ, मतलब ये क्या, फैसिलिटेटर, स्टेट विल हैव टू बिकम फैसिलिटेटर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल फॉर द प्राइवेट मार्केट टू कम इन, है ना. तो हम लोग क्या, रेड टेप क्या था, दैट वाज बेसिकली, रेड टेप रिफर्स टू द ब्यूरोक्रेटिक इशू, प्रॉब्लम ऑफ डिले, रिजिडिटी, है ना. ठीक है, तो वो हम लोग, हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन है. उसके बाद हम लोग देखे अभी इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट कमिटी, पहले डिपार्टमेंट बनेगा, फिर कमीशन, फिर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री भी बना दिया. तो ये इम्पैक्ट क्या दिखा रहा है कि हम लोग ना, स्टेट है एज ए पब्लिक, एज ए बिजनेस एंटिटी हैज फेल्ड. इसलिए स्टेटमेंट एक आता है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, है ना. तो स्टेट विल हैव टू बिकम फैसिलिटेटर, इनेबलर, कैटलाइजर, एंटरप्राइजिंग स्टेट. So these are the terms, you should be very much used to these terms, because these are very popular term in the contemporary time. ठीक, तो अब ग्लोबलाइजेशन है डिफाइन करना, यू शुड बी एबल टू रिकॉल वन ऑफ द डेफिनेशन, है ना. अली फ्रेजमैन का सर बोलते हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. तो जैसे ग्लोबलाइजेशन इन जनरल क्या है, जीएस में भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, पबएड में भी पढ़ते हैं. सो देयर इज सम डिफरेंस. ओके, तो ये डिफरेंस कैसे है, तो उसको है ना, एक कोई भी डेफिनेशन अपन, जैसे मान लो इकोनॉमिक टर्म में, सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस, इसके टर्म में अली फ्रेजमैन ने एक डेफिनेशन को याद कर लेना है ना. उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट फिनोमेना इमर्ज किया 90s में. उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन भी हम लोग के देश में 1950s में आ गया था. तो लेकिन आते आते 1990s तक हम लोग क्या देखे कि वी वर नॉट एबल टू repay the loans. There was failure, market failure, state failure. Basically welfare state has failed. तो यहाँ पे 1990s में और भी जैसे इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, और फिर गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी आएगा. तो ये आइडियाज को, न्यू राइट फिलोसफी को प्रोपोगेट किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड. और 1990s में और भी कॉन्टेक्स्ट, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो 1989 में, है ना, जो यूएसएसआर का है ब्रेकडाउन, या फिर जो जर्मनी के अंदर जो वॉल था वो ब्रेकडाउन हुआ. वर्ल्ड इज फ्लैट, मतलब देयर इज लॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वही इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब फ्री मूवमेंट हो रहा है लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, एक्सचेंज हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो रहे हैं. तो मार्केटाइजेशन मतलब रोलिंग बैक, रेगुलेशन, ये सब जो टर्म्स है ना, ये रेगुलेशन, फैसिलिटेटर, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए. कंपटीशन देख लिए, नेचर ऑफ स्टेट, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव हो गया था 1990s में, है ना, मार्केट को प्रमोट करना ही करना है. नियो लिबरल हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन, जो गुड गवर्नेंस फीचर है ना, नॉर्मली वी हैव सीन गुड गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो वर्ल्ड बैंक अलग अलग रिपोर्ट्स, 3 रिपोर्ट्स के थ्रू उसको डिफाइन किया था. ओके, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मार्केट प्रिंसिपल्स को ही प्रमोट करता है, एनपीए और पब्लिक चॉइस अप्रोच भी. तो बाद में जाके गुड गवर्नेंस और ये सब क्या करता है कि भाई सिविल सोसाइटी का रोल भी होना चाहिए. ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन में पर्सपेक्टिव क्या होगा, 3 तरह का होगा, है ना. एक सपोर्टर है, एक अपोनेंट होगा, और एक मध्यम मार्ग लेके आएगा. तो प्रोपोनेंट क्या बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द वेस्टर्नाइजेशन, है ना. वेस्टर्न लिबरल फिलोसफी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं. हम लोग लोकल कल्चर, इकोनॉमी, वैल्यू, ये सब को डिसमेंटल कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, हंटिंगटन का, फ्राइडमैन का. तो 1-2 प्रोपोनेंट का नाम आपको पता होना चाहिए. हंटिंगटन ये कर लिए, फ्राइडमैन कर लिए. ठीक है, तो इसने बोला ग्लोबलाइजेशन इज ए,
हाँ हाँ प्लीज। सर ये बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एनपीएम, बिकॉज अगर कोर में देखें तो ग्लोबलाइजेशन भी मार्केट लेड और मार्केट प्रिंसिपल्स को ही प्रमोट कर रहा है, एनपीएम वाज ऑल अबाउट दिस राइट, दैट हम उसमें मार्केट प्रिंसिपल्स को हम कोर था बेसिकली। हाँ नहीं, प्राइवेटाइजेशन को इक्वेट कर सकते हैं ज्यादा एनपीएम से या पब्लिक चॉइस से, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या है ना, थोड़ा एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सब आ जाता हाँ हाँ है हाँ, ना, इसलिए थोड़ा सा नैरो व्यू हो जाएगा उसका फिर। ठीक राइट है, राइट। तो यहाँ पे क्या, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये बोल रहा है कि भाई इतना बड़ा स्टैम्पीड ऑफ हर्ड ऐसा है कि कोई भी बीच में आएगा तो उसको एनिहिलेट कर देंगे। तो दैट इज द रिमार्क, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इट, जस्ट मेंशन सम ऑफ द प्रोपोनेंट। अपोनेंट में क्या क्रिटिक होगा, क्यों, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ना, जैसे अमर्त्य सेन हो गए है ना, लिफरेजमेंट स्टिग्लिट, तो इन लोगों ने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ limitations और lot of impact that has negative impacts that have been created by the globalization। उसको हम लोग ऐसे जीएस में भी पढ़ते हैं, जनरल आइडियाज भी है किस प्रकार से मैकडोनलाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, अपरूटिंग ऑफ लोकल कल्चर है, वैल्यू सिस्टम है, या फिर जो क्रोनी कैपिटलिज्म का राइज हो गया, एमएनसीज का जो राइज हो गया, दीज आर द नेगेटिव इन्वायरमेंटल डैमेज जो प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली एंटी डेवलपमेंट थेसिस है ना, तो यू कैन रिलेट मेनी ऑफ दोज आइडियाज इन द अपोनेंट आल्सो, स्पेशली विथ रिगार्ड टू इन्वायरमेंट, है ना, विथ रिगार्ड टू द कल्चर और ये सब वैल्यूज है। मिक्स टाइप में क्या है कि भाई कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है और कंप्लीटली एक्सेप्ट, यानी देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो बुद्धा का जो मध्यम मार्ग होता है ना, सेम आइडिया है ना। जैसे जैसे क्या कहता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स, एक किताब लिखा उन्होंने, दिस बुक यू कैन रिमेम्बर, जैसे ना स्पेशली इन द कंक्लूजन मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स यूज्ड टू राइट कि ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंटमेंट। उसमें जो उस बुक में उन्होंने क्या हाईलाइट किया, देयर आर सम प्री कंडीशंस। कोई भी कंट्री को अगर एलपीजी सक्सेसफुल करना है तो देयर आर, है ना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हैज आल्सो कम अप विद सम प्री कंडीशंस। तो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है तो काम नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल। तो अगर ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल करना है, एलपीजी को सक्सेसफुल करना है, तो लीगल सिस्टम, यानी जैसे मान लो कानून व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, दीज ऑल थिंग्स शुड बी वेरी मच वेल कंडीशन या अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, फिर ग्लोबलाइज, अब जो बाद में उन्होंने किताब लिखा ग्लोबलाइजेशन विथ ह्यूमन फेस, तो इस बुक में उन्होंने क्या किया कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहा है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है ना, लेबर का कंपनसेशन, मिनिमम लेबर राइट्स नहीं है, तो देयर वर लॉट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस वर नेगेटिवली इंपैक्टेड। तो ग्लोबलाइजेशन शुड आल्सो टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, लोकल, है ना, नीड्स ऑफ द पीपल। इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट हम लोग बार बार देखते हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेबर, सस्ता लेबर ढूंढा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन में। एक निगेटिव जो लेफ्ट विंग का जो क्रिटिसिज्म है, वो लोग क्या करता है कि देयर आर लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, दे आर क्रिटिसाइजिंग ग्लोबलाइजेशन। तो अलग अलग लोग अलग अलग, कोई कल्चर के हिसाब से कर रहा है, कोई है ना लोकल एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर, एमएनसीज आर लुकिंग फॉर चीप लेबर। चीप लेबर जिस कंट्री में होगा, उस कंट्री में, जैसे चाइना का राइज हुआ, चीप लेबर था, अब चाइना थोड़ा ग्रोइंग हो गया, डेवलप हो गया, तो अब चाइना से लोग, है ना, हटा के कंपनी कहाँ जा रही है, एमएनसीज कहाँ शिफ्ट कर रही है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इंडिया भी आल्सो अल्टरनेटिव, इस पे डिबेट चल रहा है इंडिया में, कैन इंडिया बिकम अल्टरनेटिव टू चाइना, और कैन इंडिया टेक एडवांटेज ऑफ द कंपनीज फ्लाइंग अवे फ्रॉम द चाइना। तो वो क्या है कि अपन वहां पे भी देखते हैं। एक इम्पैक्ट क्या देख लिए, वही जैसे पब्लिक चॉइस और एनपीएम का इम्पैक्ट था, देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी भी दिया हुआ, एलपीजी आल्सो उस पे इम्पैक्ट होगा, थ्योरी डिसिप्लिन सब पे होगा। तो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव स्टेट आया था 1990s में, उस समय क्या था कि भाई मार्केट, है ना, इस कॉर्पोरेट नेचर की तरह हो जाए, वेलफेयर स्टेट से किधर मूव करना है, कॉर्पोरेट स्टेट की तरह मार्केटाइज करना है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो भी था, मार्केट फ्रेंडली अप्रोच लेके आना है। ठीक है, तो अब जैसे करेक्टरिस्टिक क्या क्या कुछ दे रखा है, इंटरवेन करना है, ओपनली करना है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सीक्रेट नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली तरीके से, है ना। पहले लाइसेंस परमिट कोटा राज में क्या था कि पूरा एकदम डीप तरीके से उस पर अटैक करो, है ना, पकड़ के जेल कर दो, क्राइम, मनी मेकिंग वाज ए क्राइम, सोशलिस्ट अप्रोच जो है कि प्राइवेट सेक्टर को उतना अप्रिशिएट नहीं करता था। तो वो आइडियोलॉजी है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए मार्केट के प्रति, है ना, और उसके एनिमिटी, एंगर, उस तरह का, ओपनली मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिलक्टेंटली मतलब वेरेवर रिक्वायर्ड, ओनली नेसेसरी देन ओनली यू शुड इंटरफेयर, स्टेट शुड इंटरफेयर। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ फ्रेंडली। इसको फोर भी बोलते हैं अपन, है ना, याद करने के लिए, फ्रेंडली, ओपनली एंड reluctantly. So these are the short forms you can also make for your remembrance. फिर रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन सेम लाइक है ना, एनपीएम का जो करेक्टरिस्टिक हमने देखा सेम,
कि जैसे सेबी आ गया, ये सब जितने रेगुलेटरी एजेंसीज बने, इसको अलग से अपन चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे, है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज का एस्टेब्लिश क्या हुआ, क्या फायदा नुकसान हुआ, वो सारा डिटेल। प्राइवेटाइजेशन जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करेंगे उसमें भी देखेंगे। प्लान्स एंड प्रायोरिटीज आएगा उस चैप्टर में भी। तो ऑल दीज आर चैप्टर्स व्हिच आर लिंक टू दिस चैप्टर 1। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग और ये सब का क्या इम्पैक्ट हुआ, मैकडोनलाइजेशन पर है, गूगलाइजेशन पर है, कॉस्मोपोलिटिज्म है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटाइज हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जिससे अब क्या इंडिया में 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया है ना। गुड, फिर गुड गवर्नेंस के कई सारे इनिशिएटिव लिए गए, आरटीआई हो गया, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट। तो इस सबसे क्या होगा, ओवरऑल डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ये है उसका कॉन्टेक्स्ट, ये है कि 80s का जो हम लोग बात कर रहे थे, बर्लिन वॉल का गिरना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन करना और नियो लिबरल फिलोसफी का राइज होना। जैसे मान लो ईस्ट एशियन, जो एशियन टाइगर्स जिसको बोलते हैं, या पब्लिक चॉइस अप्रोच और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ऑल दीज वर द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन में यूज होता है। इम्पैक्ट रेलेवेंस हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आएगा उसका पॉजिटिव निगेटिव हमें पता होना चाहिए, कीवर्ड्स, है ना, जरूरी नहीं पूरा डिटेल पता हो, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स याद होना चाहिए। जैसे ना सर ने टेबुलर फॉर्म में बना दिया, तो मतलब किस प्रकार से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, किस प्रकार से, है ना, ऑब्जेक्टिव या गोल कैसे चेंज हो रहा है, इनवर्ड से आउटवर्ड हो गया, पहले रूल ड्रिवेन था तो गोल ड्रिवेन हो गया, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से फ्लूइड या फ्लैटर स्ट्रक्चर की ओर चले गए, टीम लाइक एक्टिविटी, तो है ना फ्लेक्सिबल मॉडल आ गया। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्रिटिसाइज क्या करते हैं कि वन साइज फिट ऑल है ना, तो ये एंटी डेवलपमेंट थेसिस भी बोलता है सिमिलरली पैटर्न पे। ये तो वन साइज फिट ऑल चिपकाया जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल थोड़ी नहीं, पहले ही रिजेक्ट कर चुका है ना, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल मॉडल होना चाहिए। तो वो एक ना यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वन साइज फिट ऑल से भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर वेस्टर्न कैपिटल वैल्यूज या कैपिटलिज्म को इम्पोज किया जा रहा है, इम्पोजिशन ये कीवर्ड है ना, इम्पोजिशन याद रखना है, वन साइज फिट ऑल करना है। इसको जो वन साइज फिट ऑल है ना, इसको हम लोग जब बाद में अगर जब एडवांस टॉपिक अगर कुछ लास्ट में कराएंगे, उसमें हम लोग देखिए जैसे मॉडर्निज्म है ना, ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच क्या था कि वेस्टर्न कंट्री का जो डेमोक्रेसी दैट इज द बेस्ट। बाद में जो पोस्ट मॉडर्निज्म आता है वो इसको रिजेक्ट करता है, कहता है ये गलत है, वन साइज फिट ऑल नहीं होना चाहिए, हर कंट्री हर कल्चर, नथिंग इज बेस्ट, नथिंग इज परफेक्ट, है ना, देयर आर इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट। ठीक है, तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, मॉडर्निज्म के बाद, मॉडर्निज्म में क्या था, जो वेस्टर्न वैल्यू, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, दीज आर द बेस्ट मॉडल्स, दीज आर द बेस्ट अप्रोच, तो वो रिजेक्ट करके इसको पोस्ट मॉडर्निज्म में देयर आर अल्टरनेटिव मॉडल्स आल्सो। पोस्ट मतलब कि उसके बाद भी, है ना, मॉडर्निज्म के अलावा कई सारे और भी डेवलपमेंट दिए, जैसे अनेकांतवाद है ना, जीएस में हम लोग पढ़ते हैं ना, अनेकांतवाद कल्चर में स्पेशली। तो इसमें क्या होता है कि भगवान को रीच करने का कई तरीके होते हैं, तो देर आर मल्टीपल वेज टू नो द ट्रूथ, ट्रूथ जानने के कई तरीके हैं। जैसे मान लो एक एलिफेंट का ना, एलिफेंट वाला एग्जांपल जो नॉर्मली पढ़ते हैं कि है ना, अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट को टच कर रहे थे, दे ब्लाइंड पीपल, टेन सम मेनी ऑफ द ब्लाइंड पीपल वेर आस्क्ड टू टच। तो उसमें क्या है कि लोग को लगता था अच्छा यही दुनिया ऐसा ही है या फिर ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, तो एलिफेंट इज लाइक लेग, एलिफेंट इज लाइक तो ऐसा अलग अलग तरीका आती है। सिमिलरली देर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव आने से ये पोस्ट, जितने भी पोस्ट फिनोमिना है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, तो दीज आर नथिंग बट द दे आर ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या मॉडर्निज्म। ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद का है ना, तो अभी डिटेल में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो इसको हम लोग पोस्ट पे क्यों बोलते हैं कि पोस्ट में क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस को भी हाईलाइट किया जाता है, उसको ओवरकम कैसे किया जाए। जैसे ग्लोबलाइजेशन का क्या देखे, प्रोपोनेंट था, अपोनेंट था, और बाद में मिक्स व्यू आ गया, तो दैट इज हाउ सिमिलरली। तो क्रिटिसिज्म में क्या वन साइज फिट ऑल इम्पोज किया जा रहा है वेस्टर्न वैल्यू को। उसके बाद क्या है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टाइप हो गया, है ना, डार्विन का थ्योरी टाइप। तो डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा कितने हो, डेवलपिंग कंट्री को डिसएडवांटेज हो रहा था, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे मान लो कई सारे प्री कंडीशंस लगा दिए, है ना, तो प्री कंडीशंस क्या, सोवरेनिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, दीज आर द क्रिटिसिज्म। फिर एमएनसीज का राइज होना, उससे क्या नेगेटिव कोअर्सिव स्टेट हो गया, स्टेट बिकेम कोअर्सिव, जैसे लैंड डिस्प्लेसमेंट है, लोगों को क्या हटा के उधर से इधर किया जा रहा है, तो रिसोर्स लूट हो रहा है, रिसोर्स कैप्चर हो रहा है प्राइवेट के द्वारा, एमएनसीज के द्वारा। दीज आर द लेफ्ट विंग क्रिटिसिज्म आल्सो, है ना। तो सब्जेक्ट तो क्योंकि उसमें सारे तरह के पॉलिटिकल थिंकर, सोशल थिंकर, तो सब लोग है ना अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं। तो कॉर्पोरेटिव कोअर्सिव स्टेट बन गया, एमएनसीज मैनिपुलेट करने लगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्टॉर्ट करता था। जैसे एग्जांपल दे रखा है केजीडी 6 बेसिन का, है ना, नियामगिरी हिल्स का, वेदांता पे उसको, ये सब केस कई सारे सुप्रीम कोर्ट में जो पीएल जाता है, तो कई सारे मैटर वहां पे एक्सपोज हुआ है।
कि किस प्रकार स्टेट कोअर्सिव हो गया, है ना, लोगों रिसोर्स का लूट हो रहा है ना, सस्ते दाम पे बेचा जा रहा है कई सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक। तो कोअर्सिवनेस से क्या हो गया कि अब उसको है ना प्री, अब जो स्टेट है, स्टेट फेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट में यहाँ पे हमारे पास ना लीगल फ्रेमवर्क है, ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। तो इससे क्या होना, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, रिसोर्स लूट है, दीज आर द इम्पैक्ट। फिर इनइक्वालिटी तो ऑक्सफैम रिपोर्ट ये सब देख ही रहे हैं, कितने कम परसेंटेज लोग, 10% लोग 80% रिसोर्स पे कब्जा कर रखा है, ठीक। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन में, देखो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का भी है ना, कहीं ना कहीं वो ऐसा क्रिटिसिज्म करता है कि दे आर द सिंबल ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। तो निगेटिव व्यू है सिविल सोसाइटी का भी, लॉबी वॉबी जो होता या है ना, फ्रंट क्रिएट हो जाते हैं कई सारे, कॉर्पोरेट का भी फ्रंट होता है जो पीएल फाइल करता रहता है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी कई सारे तरीके से जब जुडिशरी पढ़ेंगे वहां पे भी देखेंगे पीएल का भी मिसयूज हो रहा है ना, कंपटीशन को कम करने के लिए, या एक दूसरे अपोनेंट जो कॉम्पिटिटर है कॉर्पोरेट, उसमें भी। फिर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट भी चला था उधर कि 90 वी आर 99% एंड वी हैव द ओनली 1% रिसोर्स। तो इस तरह का क्या इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली प्रो अपोनेंट क्या होगा, कुछ है ना इसके गॉप। तो आज जो बेसिकली अभी जो कॉन्सेप्ट था 1990s का जो दौर था, उसमें नाइट मैन वॉचमैनशिप का कॉन्सेप्ट, यानी स्टेट शुड ओनली नो बिकम ए रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, इनेबलर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। क्यों? गवर्नमेंट शुड बी मिनिमल, है ना, रोल बैक ऑफ द स्टेट, विड्रॉल ऑफ द स्टेट। तो दीज आर द टर्म्स व्हिच आर लिमिटेड। स्टेट का क्या होना चाहिए? लिमिटेड रोल होना चाहिए, लेट द प्राइवेट प्लेयर्स प्ले द। लेकिन ये जो क्राइसिस आ गया 2007-8, देन ऑल द नेगेटिव आउटकम्स दे वर नाउ क्रिटिसाइज्ड वेरी वोरेसियसली। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो क्रिटिसिज्म हम लोग देखते हैं, सोवरेनिटी है उस पे भी, वेस्टफेलियन ट्रीटी का जो इम्पैक्ट था, ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं वहां पे रिजेक्ट करता है वेस्टफेलियन जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया जाता है ना। नॉर्मली हम लोग इसको वेस्टफेलियन मॉडल को फॉलो करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन उसको भी रिजेक्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहा है ना। तो सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, डिसमेंटल करो बाउंड्रीज को, रेस्ट्रिक्शन को, लेट द पीपल मूव, है ना, लेट एवरी बिजनेस एक्टिविटीज पीपल एवरीवन शुड, प्रोटेक्शनिज्म खत्म करो। तो इससे है ना, जैसे मान लो डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशन चल रहा है, एक्स मार्केट एक्सेस का बात हो रहा है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे कंट्री अपोज कर रहा है, इंडिया भी, है ना, इंडिया भी चाह रहा है कि कुछ है ना, कुछ हमें सेफ्टी मेजर्स दिया जाए, ठीक। जैसे ब्लू बॉक्स है, तो ग्रीन बॉक्स, ये सब बॉक्स है ना, अलग अलग तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस में देख रहे हैं कि कैसे मोनोपोली या डोमिनेंस है वेस्टर्न कंट्री का, और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। जैसे यूएनएससी में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया को मेंबरशिप दो, या बाकी और जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडियन, तो वो हम लोग देख रहे हैं। रेलेवेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का? ऐसा नहीं कि निगेटिव, पॉजिटिव तो हम लोग देख ही चुके हैं। स्टेट क्या मोर इंटरडिपेंडेंट हो गया तो वार भी कम हो जाता है, फिर एक दूसरा का अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर भी हो गया, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का भी आउटलुक आया। तो इससे क्या है कि, है ना, तो स्टेट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ता जा रहा है ना, आउटवर्ड लुकिंग हो रहे, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी, जो गुड गवर्नेंस के फीचर्स है ना, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के कारण ही आया। फिर उसके बाद मार्केटाइजेशन, रेगुलेशन, फैसिलिटेशन है ना। तो स्टेट का क्या ओवरऑल मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी भी है ना इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन के इवैल्यूएशन को मतलब 3 फेज में बांटते हैं नॉर्मली सर, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला फेज था, है ना, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन पीक पे आएगा का 1990 आते आते। तो दिस वाज ड्रिवन बाय वेस्टर्न कंट्री, डेवलप कंट्री है वो लोग, है ना, पहला फेज को डोमिनेट करता है। फिर धीरे धीरे कंपटीशन होगा, बाद में जाके 2008 के बाद ना, अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो अब जाके पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज भी आया था एक बार। तो इसमें एंटी ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, या डी, है ना, देयर आर मल्टीपल वोकेबुलरीज लाइक डी ग्लोबलाइजेशन, है ना, या एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। तो अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के प्रति जो डिसकंटेनमेंट हमने देखा, स्टिगलर का जो किताब है उसमें भी कई सारे निगेटिव लिमिटेशंस को हाईलाइट किया गया। तो एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या देख रहे हैं कि 90 नॉर्मली 80 से लेकर 2000 तक का जो पीरियड, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था, या प्रोपोनेंट थे इसके। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में क्या आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं 2000 के बाद क्या ना, एक तो ईस्ट एशियन क्राइसिस आ गया 1997 में। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ गया। निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने से क्या हुआ कि अब जो है स्टेट विल हैव टू, है ना, प्ले ए मोर प्रोएक्टिव रोल, है ना। डिस्कोर्स क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन पे चेंज हुआ। तो जैसे मान लो दो इकोनॉमिक क्राइसिस, पहला जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा, जो ग्लोबलाइजेशन को रीथिंक करने के लिए मजबूर किया ग्लोबल गवर्नेंस को, कि स्टेट का रोल को आप कंप्लीटली अंडरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनेंशियल गवर्नेंस या ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे प्रमोट किया जाए, तो है ना G20 ये सब मेंबर्स आके कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं कि ट्रेड WTO में नेगोशिएशन पे फोकस किया जा रहा है, ठीक। तो रीबैलेंसिंग करना जरूरी है, यानी
जो ग्लोबलाइजेशन है उसको थर्ड फेज में बैलेंस करना। तो ट्रम्प आया तो क्या है ना, ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, फिर दे स्टार्टेड रिमूविंग देम से, विड्रॉ करने लगा, जैसे टीपीपी से विड्रॉ कर लिया, नफ्टा से कर लिया, डब्ल्यूटीओ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्री एग्जिट हो गया। तो दीज वर द एक्शंस या एक्टिविटीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्री वेयर इट शोज कि दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड फेज में क्या देख रहे हैं, मोस्टली डेवलपिंग कंट्री दे वर लीडिंग इट। ठीक। तो इंटर अब वर्ल्ड इज, अब तो क्या, वर्ल्ड हाईली इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट हो गया। तो नाउ नो कंट्री कैन रोल बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, है ना। अब तो ग्लोबलाइजेशन का एक जो पीक था वो आ चुका है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, रीबैलेंस करने की जरूरत है ना। वी हैव टू एलिमिनेट द बायसेस, या जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच था उसको खत्म करना है ना। चाइना है, इंडिया है, दे ऑल आर प्लेइंग, जैसे इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर, बीआरआई चाइना के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो जीएस कंटेंट भी काफी हेल्पफुल होता है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, है ना, जो हम लोग देख रहे हैं। अब इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो, वे लेस वेस्ट सेंट्रिक होना चाहिए, और कैपिटलिज्म, नॉट नेसेसरी कैपिटलिज्म, है ना, अलग अलग टाइप का सोशलिज्म में भी रिफॉर्म्स हो रहा है। ठीक है। तो बाकी और भी अल्टरनेटिव बैंक्स आ गए। पहले तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ही था, अब तो ब्रिक्स बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, तो ये सारे बैंक्स भी आने लगे। तो कुछ है ना, कुछ और थिंकर, समीरा अमीन जैसे बोलता है, भाई जब तक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं होगा तब तक ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक। तो अब हमको क्या, ग्लोबल विलेज की ओर, है ना, जाना है। तो वो एक आइडियोलॉजी है ना। अभी तक सिर्फ एक आइडियोलॉजी रहा है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड इज ए फैमिली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी तो सबके लिए फायदा होगा ना। तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट क्या रहा, है ना, डिसिप्लिन पे भी होगा। जैसे फ्रांसिस फुकुयामा है ना, तो उसने इस बोला कि भाई अब है ना ग्लोबलाइजेशन लेस वेस्ट सेंट्रिक बना दिया इसको। ठीक है, लेस एथनो सेंट्रिक, एथनोसेंट्रिसिज्म जो यूएस सेंटर्ड होता है। ठीक। और ग्लोबल डिसिप्लिन भी बना दिया पबेट को। क्यों, पबेट अब हम लोग डेवलपिंग कंट्री के भी केस स्टडी पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में स्टडी किया जाता है, या जो बैंक है ना, बैंक लिंकेज है प्रोग्राम, उसके बारे में। तो अलग अलग इनिशिएटिव के बारे में भी ग्लोबल, अब जो डिसिप्लिन पबेट है, जो डिसिप्लिन में हम लोग क्या, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, सबको भी स्टडी किया। तीन मेजर है ना सिस्टम, जैसे बताया गया फ्रांसिस फुकुयामा का। तो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अब ये क्वेश्चंस नॉर्मली इतना डेप्थ में नहीं आता है। ठीक है। तो इन जनरल भी अगर आपको पता है और एक दो प्रोपोनेंट का नाम याद कर लिया, दैट इज एनफ। नॉट रिक्वायर्ड टू, है ना, इसमें इतना जो सर ने लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड टू, है ना, रिमेंबर एंग्लो अमेरिकन चाइनीज, ये कभी क्वेश्चन नहीं आया और नहीं आएगा। ठीक है। एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन को हम अलग अलग तीन फेज में बांटते हैं, तो तीन फेज का कैरेक्टरिस्टिक पता हो, है ना। सोलबलाइजेशन है, अलग अलग टर्म्स, अलग अलग थिंक करना, यही बैठ के काम करते रहते हैं, वोकेबलरी बनाते हैं। ठीक है। डिसकंटेनमेंट होगा तो कैसे स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जाए। ठीक। उसके बाद गुड गवर्नेंस आता है ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर ऑलरेडी अवेयर, वी हैव डिस्कस इन, है ना, डिटेल। तो गुड गवर्नेंस वही है, एक डेफिनेशन आपको याद करना है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, या गुड मतलब क्या, ये गुड जो है ना, बेसिकली गुड एक, है ना, वैल्यू एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है ना, वैल्यू बेस्ड है। गवर्नेंस को यहाँ एज ए न्यूट्रल टर्म, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं। तो ये गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वही है। गुड गवर्नेंस क्यों आया था, इसका भी कॉन्टेक्स्ट अभी दिया हुआ है। जैसे मान लो ट्रेडिशनल सेंस में क्या होता था, स्टेट जो लोगों को रूल करता था, उसका काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी लेके आना। तो लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, जुडिशियल, ये तीन काम होता था। लेकिन है ना, तो उसमें यहाँ पे क्या है, स्टेट का डोमिनेंस देख रहे हैं। 1980 19 आते आते क्या देखे कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है ना, पैसिव था। इसको ना पुअर गवर्नेंस बोला गया। तो पुअर गवर्नेंस अगर वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में है, इनएफिशिएंट है ना, इस डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ दिया जा रहा है, गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है। और ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक लेके आता है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि गवर्नेंस 1990s में सेम एलपीजी का जैसे पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा था। तो इसमें ना तीन रिपोर्ट आता है, एक 1989 में, 1992 में, और 1997 में। इसमें गुड गवर्नेंस गवर्नेंस सबको डिफाइन करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो इसमें हम लोग पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो सेकेंड फेज आता है, उसमें देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, गुड गवर्नेंस कैसे लाया जाए, उसके की फीचर्स भी है। कॉन्टेक्स्ट क्या था, इमरजेंट। तो न्यू लिबरल फिलोसफी, जो पब्लिक चॉइस और न्यू राइट देख लिए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, डेवलपिंग कंट्री अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, पुअर गवर्नेंस था, वो भी एक कॉन्टेक्स्ट था इन प्रैक्टिस, है ना। फिर कई सारे रिपोर्ट लेकर आए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब 90s में ही यूएनडीपी के द्वारा लाया गया था, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट। ठीक। 1950s में यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट था, वेलफेयर और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। अब 1990s आते आते हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेजर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट आ रहा है, एलपीजी, एनपीएम है, ई गवर्नेंस रिफॉर्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट।
तो तीन इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है ना, यू कैन मेंशन सम ऑफ द रिपोर्ट्स। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट नॉर्मली कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गवर्नेंस के इवोल्यूशन पे, तो उस पे अपन तीनों रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं, है ना। और इसमें जरूरी नहीं कि है ना इसको हम पार्ट के फॉर्म में भी याद करते हैं। पहला रिपोर्ट था फ्रॉम क्राइसिस टू डेवलपमेंट, सब सहारन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि है ना पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में रिफॉर्म जो एनपीएम ने इन्फ्लुएंस किया, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी या टेक्नोलॉजी अकाउंटेबिलिटी और सब होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी रोल आ गया। तो इसको हम लोग पार्ट के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट में जो डिफाइन किया था, कैरेक्टरिस्टिक दिया था, चार इंपॉर्टेंट, दीज आर स्पेसिफिक कंटेंट, है ना। इसमें क्या डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें चार के बदले पांच नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली रिपोर्ट से कोट कर रहे हैं। इफ यू आर मेंशनिंग इट मेनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, तो दीज आर इंपॉर्टेंट, है ना। तो फिर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में क्या देख रहा है, तो इसमें लिंक को एस्टेब्लिश किया कि गवर्नेंस कैसे डेवलपमेंट से लिंक है ना। और डेफिनेशन भी दिया गया पहली बार गवर्नेंस का। तो जरूरी नहीं लाइन बाय लाइन याद, जनरल भी पता है तब भी चलेगा, बस ये कि यहाँ सेकंड रिपोर्ट में डिफाइन किया। फिर इसको कॉइन किया था थर्ड रिपोर्ट 1997 का, जो स्टेट इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग, डायनामिज्म आ गया। तो वहां पे गुड गवर्नेंस के की कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया। ये जो तीन रिपोर्ट है यही बेस बना, है ना। बाद में जाके कई सारे और एजेंसी ने भी गवर्नेंस को डिफाइन करने का कोशिश किया। मल्टी वेरियस, है ना, वेरियस डेवलपमेंट जो भी आते हैं, तो एलपीजी दे ऑल विल इम्पैक्ट, है ना, गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक जो। तो नॉर्मली है ना, ध्रुव सर ने भी बोला है कि आपको यू शुड बी एबल टू रिमेंबर एटलीस्ट वन एग्जांपल फ्रॉम, है ना, एक केस स्टडी है, एक एग्जांपल है अच्छे अच्छे मॉडल्स का, सो दैट वंस यू हैव टू डिस्क्राइब इट, एथिक्स में भी काम आने वाला है सेम थिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू, एक दो एग्जांपल करंट फैक्ट्स है ना जो, या फिर क्वेश्चन आंसर में जो डिस्कस करेंगे करंट गवर्नमेंट का स्कीम पॉलिसी जब पढ़ते हैं, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर वन और टू एग्जांपल ऑफ दिस। तो रिस्पॉन्सिव मतलब डिलीवर करने का, है ना, कैपेसिटी टू डिलीवर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी ऑब्लिगेशन हो गया। अकाउंटेबिलिटी मतलब रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना। तो ये जब कोई भी कंट्री अगर है ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो क्या होगा, इससे ओवरऑल गवर्नेंस इंप्रूव हो जाता है, पीपल सेंट्रिक हो जाएगा, सिटीजन सेंट्रिक हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन में भी हमने देखा काफी सारे एलपीजी जो रिफॉर्म लेके आया था। एड कंडीशनैलिटी भी हमने देखा गुड गवर्नेंस का, कई सारे एड है ना प्री कंडीशंस है कि अगर गुड गवर्नेंस आने से पहले जो हमने देखा डेमोक्रेटिक रेजिम, है ना, या ब्यूरोक्रेसी रूल ऑफ लॉ के आधार पे होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का एक्टिव रोल और इनलाइटेंड पॉलिसी मेकिंग। तो दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर गुड गवर्नेंस। यानी गुड गवर्नेंस का फीचर हमने जो देखा, है ना, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि गुड गवर्नेंस आएगा उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस, कि आपके देश में डेमो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री क्या डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, तो वहां पे क्या बोला, डेमोक्रेटिक रेजिम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जैसे चाइना को क्रिटिसाइज करता है, या है ना अलग कई सारे ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज हैं उसको क्रिटिसाइज, या डिक्टेटरशिप को क्रिटिसाइज करता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए। तो दीज आर द प्री कंडीशंस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज अगेन यू कैन यूज इन द जीएस आल्सो, इन द एथिक्स पेपर और जीएस 2। ठीक, तो अब इसमें है ना करेंटली क्या अथॉरिटेरियन रेजिम है, आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर हो रहा है, पैसिव रोल, सिविल सोसाइटी डेवलप नहीं है, पॉलिसी मेकिंग बहुत ही नैरो व्यू से, इनलाइटेंड पॉलिसी मेकिंग नहीं है। तो उसने जैसे बाकी, तो दीज आर द प्री कंडीशंस, करंट प्रॉब्लम को भी हाईलाइट किया, ये होना जरूरी है। ठीक, तो यूएन ने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड किया कि भाई पार्टी ये वो सेम, मतलब इसमें बस सोशल जस्टिस, इंक्लूसिवनेस, या है ना वुमेन, ये पहला न्यू कंपोनेंट, दीज आर द यूनिकनेस, यूनिक कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, गुड गवर्नेंस जब वर्ल्ड बैंक का फीचर्स है ना याद ही रहता है, तो बाद में जब है ना यूएन का जो डेफिनेशन है उसमें अपन थोड़ा ब्रॉडन कर दिया, है ना, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे ये तीन कंपोनेंट है ना, इंक्लूसिवनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, या सोशल जस्टिस। तो यूएन कैरेक्टरिस्टिक हैज फोकस मोर ऑन द क्वालिटी एस्पेक्ट, है ना, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस कैसे हो। तो एक डिफरेंशिएट करने के लिए, थोड़ा आंसर को और डाइवर्सिफाई करने के लिए, यूएन के जो तीन कंपोनेंट इसको भी मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द गुड गवर्नेंस फीचर। ठीक, तो उसके बाद ये इक्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे फोकस किया, मेजर कैसे करना है, तो कई सारे इंडिसेस लेके आए, है ना, जितना भी पीटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना बहुत सारे इंडिसेस, तो जेंडर इंडेक्स है, इनइक्वालिटी इंडेक्स है, तो ये सारे इंडेक्स आपको डिसाइड करता है कि वेदर कंट्री हैज ए गुड गवर्नेंस और नॉट। इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, अब तो नीति आयोग भी कई सारे इनिशिएटिव लिया, ये सारे रिपोर्ट लेके आते हैं। ठीक, तो ये सब रिपोर्ट आपको है ना करंट स्टेटस पता होना चाहिए। तो इंडिसेस में हम लोग क्या देख, रैंकिंग वैंकिंग है सबको, है ना, एसडीजी पे भी इम्पैक्ट, एमडीजी से एसडीजी पे आ गए हम लोग। ठीक, तो रिलेशनशिप क्या है गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में, सिंपल है। तो गवर्नेंस क्या होता है, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या है, मतलब इतना डिटेल में जाने की जैसे मान लो गवर्नेंस है, लेट ये गवर्नेंस एक टर्म है, तो इतना ये तो थ्योरेटिकल टाइप का हो गया।
तो इंट्रोडक्शन में अगर चाहो तो मेंशन करो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अगर याद हो रहा है ठीक है, सिंपल रखो इसको। ठीक है, गवर्नेंस इज अबाउट जैसे एक्सरसाइज करने, पहले क्या था, डोमिनेंस का बात होता था, अथॉरिटी एक्सरसाइज का बात होता था। कब? जब हम लोग पहले बात करते थे 1950 से 1990 के बीच, जहाँ पे स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल था, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्यूरोक्रेसी। तो बाद में है ना, तो अब ग्लोबलाइजेशन जो आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आया, इसमें हम लोग स्टेट के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, स्टेट विड्रॉवल। स्टेट अब इज नॉट द ओनली प्लेयर। तो पहले क्या होता था, स्टेट का रोल देखो काफी डोमिनेंट रोल था। और यहाँ पे क्या है कि सिविल सोसाइटी, स्टेट और मार्केट तीनों भी है ना, ऑल थ्री हैव बिकम इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो फ्लैटर और पार्टिसिपेसिव भी ऐसा होना चाहिए। तो कॉन्टेम्पररी टर्म में जो ट्रेडिशनल सेंस ये था कि स्टेट विल डू एवरीथिंग, है ना, यहाँ पे क्या है, एक स्टेक होल्डर अप्रोच है ना। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो रेशनल वही है कि भाई गवर्नेंस क्या होता है, कलेक्टिव एफर्ट है, पार्टिसिपेटिव, इफेक्टिव, क्वालिटी पे फोकस करता है ना। स्टेट का कैपेसिटी, अल्टीमेटली स्टेट का एम्पावर ही हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केट भी है, सिविल सोसाइटी भी है, लोग भी आ रहे हैं, है ना। तो लोगों को जानकारी है ना प्रॉब्लम्स का, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, स्टेट विल बिकम मोर इफेक्टिव। इनफैक्ट गवर्नेंस हैज स्ट्रेंथन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, उसको और स्ट्रेंथन किया, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेजिटिमेसी स्टेट का बढ़ता जा रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ता जाता है, वोटिंग परसेंटेज भी देख रहे क्या इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर द वेज टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंट्री। तो डेफिनेशन है, अलग अलग कंट्री का है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर, एक दो याद कर लेना, है ना। यूएन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन एक्सक्यूशन, है ना, एक्सक्यूशन। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन कलेक्टिवली सॉल्व कैसे करें, सारे पार्टिसिपेट है ना, तीनों स्टेक होल्डर मिलके। जनरल डेफिनेशन है, अगर स्पेसिफिक लिखना यूएन का लिख सकते हैं या वर्ल्ड बैंक का लिख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक बोलता है किस प्रकार, किस मैनर से अथॉरिटी एक्सरसाइज होता है जो देश के सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स को यूज करता है डेवलपमेंट लाने के लिए। तो इफ यू विश यू कैन रिमेम्बर, और यू कैन, है ना, 1992 का जो सेकेंड रिपोर्ट उसमें डिफाइन किया था पहली बार। ठीक है, तो गवर्नेंस। अब सर ने क्या किया ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सर ने उसको मतलब मैकेनिकल कर दिया, एक नोट्स में लिखा दिया, ताकि यू डोंट हैव टू लुक फॉर अदर मटेरियल या सोर्सेस बनाने की, डायरेक्ट आप है ना कीवर्ड्स को उठा के कोट कर सकते हैं। तो ऐसा नॉर्मली पहले एथिक्स में भी जैसे आता था, गवर्नमेंट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, क्या अंतर है, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में क्या अंतर है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन है, और ये प्रोसेस, गवर्नेंस हमने क्या देखा, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग है, सॉल्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक, तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। फिर हम अथॉरिटी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जब गवर्नमेंट आता है, यहाँ कलेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं। ये टॉप डाउन सेंट्रलाइज अप्रोच होता है, क्वांटिटेटिव है, ये फ्लैटर आउटवर्ड है, और क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कोइस होता है, स्टेबिलिटी चाहता है। यहाँ पे क्या, नीड बेस्ड यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। पीएम मोदी कहते हैं कि ये फाइल है, गवर्नमेंट इज अबाउट फाइल, और गवर्नेंस इज अबाउट लाइफ, है ना। तो नए नए कोटेशन बनाते रहते हैं। तो डिफरेंस वही है, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस, गुड में क्या आ गया, वैल्यू एस्पेक्ट आ गया बस, है ना। वैल्यू फ्री है, एक प्रोसेस है, गवर्नेंस क्या है, एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस ऑफ, जैसे मान लो पूरा टीम में अपन डिसीजन ले रहे हैं, तो दैट इज वैल्यू फ्री। लेकिन उसमें अगर क्वालिटी ऐड हो गया, कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, सोशल जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है, इनइक्वालिटी कम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वैल्यू लेडन एस्पेक्ट, दैट इज द गुड। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, सिंपली क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी वुमेन जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो सब भी पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपल पार्टिसिपेशन हो रहा है, देन वी हैव द गवर्नेंस, है ना। तो ये ब्रॉडर जनरल कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाइड कॉन्सेप्ट है, क्यों, स्पेसिफिक मीनिंग होता है इसका। गुड ऐड कर दिया ना गवर्नेंस में, ई ऐड कर दिए, ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया। तो ये सब क्या है, जो पहला टर्म होता है प्रीफिक्स क्या करता है, इसको गवर्नेंस को एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है। जब डिजिटल गवर्नेंस बात करेंगे, ई गवर्नेंस बात करेंगे, एथिकल गवर्नेंस बात करेंगे, तो गवर्नेंस को एक क्या दे रहा है, एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है ना। दिस इज द आइडिया। ठीक, तो देखो ऐसा नहीं, ये सब जनरल कंटेंट है, जरूरी नहीं कि ना एक एक पॉइंट आपको याद है। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस प्रकार ये, है ना, गवर्नेंस एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर गुड गवर्नेंस होता है, जो कुछ प्री कंडीशंस होते हैं कि कैसे गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक, तो गवर्नेंस वैल्यू टर्म हो गया, स्कोप है ना वाइडर देन, गवर्नेंस का स्कोप तो वाइडर होगा गुड गवर्नेंस से। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, है ना, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो दीज आर द टर्म्स, है ना, वी शुड बी वेरी फेमिलियर। अब एक और फेमिलियरिटी आता है, तो वी नो द प्रीफिक्स का मतलब स्पेसिफिक करने का है। ठीक, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, फिर ना डिस्पर्सल ऑफ पावर है, स्टेक होल्डर अप्रोच है, या क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पे फोकस। ठीक, तो लिंक गवर्नेंस और डेवलपमेंट में क्या लिंक है,
किसी कंट्री में अगर डेवलपमेंट है ना, जैसे 1992 का रिपोर्ट इसमें हाईलाइट किया, अगर स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है ना, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा तो नहीं होगा तो मार्केट नहीं आएगा। डेवलपमेंट पॉसिबल होगा तब जब, है ना, गवर्नमेंट गवर्नेंस अच्छा होगा, पार्टी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है, इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो दीज आर फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस में अपन ये देखते हैं कि डेवलपमेंट होने के लिए क्या प्री गवर्नेंस भी प्री कंडीशन है, दोनों इंटरलिंक है। जैसे अभी नॉर्थ साउथ डिवाइड चल रहा है ना, स्पेशली एचडीआई है, यूपी बिहार, है ना, तो कई सारे स्टेट को बीमारू स्टेट का रेफरेंस दिया गया था। तो अब क्या है ना, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इम्पैक्ट करता है। कुछ स्टेट में गवर्नेंस का क्वालिटी बढ़िया है, कुछ स्टेट में अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाट आर द फैक्टर्स? डू दे हैव द रूल ऑफ लॉ? है ना, कई जगह बात करते हैं कि क्राइम बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो मार्केट आएगा? किसी भी एरिया में जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पे मार्केट नहीं आएगा, है ना, प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो इससे क्या होगा ना, ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो यही डेमोक्रेसी और गवर्नेंस पे भी लिंक है। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। पार्टिसिपेशन कब होगा? जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए, है ना। तो एक कंट्री, लोगों को, सारे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस का जो फीचर है डेमोक्रेसी के फीचर सिमिलर, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। डेमोक्रेसी अगर है, मान लो स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो डेमोक्रेसी, है ना, तो आप मतलब गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहेगा, प्रॉब्लम होता रहेगा। फिर गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये जितने भी सर ने रिलेशन बताया ना, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, है ना। एक दो क्वेश्चन सर ने इस पे बनाया है, तो दे सेम कंटेंट इज गोइंग टू बी यूज इन द डायरेक्टली इन द आंसर। ठीक है। तो कई बार है ना, यूपीएससी इनोवेट करता है, सर ने क्या किया, जितने भी पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकता है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक। एसडीजी वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो जो हम ना, ये गोल्स आपको पता होना चाहिए, जीएस में भी पढ़ना होता है। तो दो चार गोल्स याद करना है कि पॉवर्टी है, डिजीज को है, या इकोलॉजी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अल्टीमेटली क्या है, गुड गवर्नेंस आएगा, है ना। गुड गवर्नेंस के बिना तो ये अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो गुड गवर्नेंस है ना वन ऑफ द प्री कंडीशन। जैसे हेल्थ मिशन अपन करंट, है ना, कई गवर्नमेंट ने लेके आया, आयुष्मान भारत है। तो क्रिटिसिज्म, अब क्या क्रिटिसिज्म भी होगा, कोई भी कंसेप्ट है बिना क्रिटिसिज्म का तो रहेगा नहीं। इसमें हम लोग एड कंडीशनैलिटी है, कहते हैं कि भाई ये सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, एड कंडीशनैलिटी इम्पोज किया जा रहा है। ठीक। तो ये क्रिटिसिज्म है। अब उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया तो नहीं है। मान लो राम राज की बात कर रहे थे, है ना, राम राज होना चाहिए। तो देर आर इंडियन कॉन्सेप्ट आल्सो, राम राज का कॉन्सेप्ट है जैसे। ठीक। तो ये सारे क्या है, दीज आर द क्रिटिसिज्म कि भाई गुड गवर्नेंस हमारे लिए नया नहीं है। ठीक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनपीएम, जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वो सबको भी रूल ऑफ लॉ, मार्केटाइजेशन, ये सब जो बात की है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब होना चाहिए। ठीक। तो नियो नॉन इकोलॉजिकल था, अब तक वन साइज फिट ऑल था, इम्पोज किया जा रहा था। दीज आर द, यू नो, वेस्टर्नाइजेशन, मैकडोनलाइजेशन, वो सब जो है। लेकिन हम लोग इंडिया में भी फिलोसफिकल फाउंडेशन सर ने बताया, जैसे वेदा, उपनिषद, रामायण, भारत, रामराज का कॉन्सेप्ट है, सत्यमेव जयते। तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के फीचर्स को इंडिया में ऑलरेडी, हमारे देश में प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक। तो हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। वो भी कहते हैं वेस्टर्न ने भले इम्पोज किया वेस्टर्न वैल्यू, तो देर आर ऑलरेडी मेनी एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन आवर कंट्री। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो है ना, बाकी एलिमेंट, इकोलॉजी, जो रिक्स ने स्टडी किया, फाइंड आउट किया कि इंडिया जैसे कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में कई सारे सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है, करप्शन बहुत ज्यादा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसको कैसे, रिलीजियस कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होते रहता है, उसको कैसे हैंडल करना है ना। तो रेलेवेंस, अब देखो फाइनली क्या रेलेवेंस पे आता है। रेलेवेंस क्या हो गया कि भाई ये तो न्यू लिबरल फिलोसफी का प्रोडक्ट था गुड गवर्नेंस। क्यों? एड कंडीशनैलिटी फॉर्म में आया था। बाद में भले यूएन और ये सब बाकी एजेंसी ने जब डिफाइन किया, तो सोशल जस्टिस, इनक्लूसिवनेस, ये सब पे फोकस किया। ठीक। तो अब उसमें वही है कि जहाँ पे जिस कंट्री में प्रॉब्लम होगी, सिक्रेसी होगा, ओपननेस नहीं है, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पैसिव एक्टर है, तो वहां पे क्या है कि डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और जितने भी रिलेशन हमने देखा, ठीक है, तो ऑल दीज आर नॉट पॉसिबल। तो हमको क्या है, गुड गवर्नेंस 3 डिकेड में ये रियलाइज हुआ, कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, जैसे मान लो आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ये सब क्या है, ऑल दीज आर इम्पैक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस फीचर्स या इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग काफी अच्छा किए, कॉम्पिटिटिवनेस में भी हम लोग देख रहे हैं हर साल हम लोग का इंप्रूवमेंट हो रहा है रैंक में। तो रेगुलेशन का क्वालिटी इम्पैक्ट किया। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट जैसे स्कीम या डीबीटी वाला भी बातचीत अभी चल रहा है। ठीक। तो कितने सारे गवर्नेंस के इनिशिएटिव जो इम्पैक्ट हुआ, रेलेवेंस वही तो है कि कितना प्रैक्टिकली यूजफुल रहा या नहीं रहा। तो ओवरऑल लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा,
कई सारे इंडिसेस हमें फोर्स करता है कि पैरामीटर्स को वर्कआउट किया जाए, इंप्रूव किया जाए, जेंडर में है, एसडीआई में है ना, उसके रूल ऑफ लॉ कैसे लाया जाए, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाए। तो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट, डेमोक्रेटाइजेशन या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो दो एड कंडीशनैलिटी था, है ना, लेकिन ये दोनों कंट्री के लिए, बोथ कंट्री, डेवलप कंट्रीज, हर किसी के लिए ये रिक्वायरमेंट था। दीज आर द एसेंशियल क्वालिटीज, है ना, ऑफ एनी गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस 90s में कैसे आया था? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या वेस्टर्न सेंट्रिक था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ना, ये लेस एड कंडीशनैलिटी, आजकल क्या इकोलॉजिकल बात करते हैं, या यूएन का जो डेफिनेशन है, इंक्लूसिवनेस, सोशल जस्टिस, उसके आधार पे ह्यूमन राइट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके आधार पे होते हैं। ठीक, अब ये जैसे क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी एवरीथिंग शुड डिसाइडेड बाय द पीपल। तो बट ये गुड गवर्नेंस का फीचर जो एड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या एड कंडीशनैलिटीज हमने देखा, दे वर इम्पोज ऑन द कंट्रीज। तो लोग ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, ये तो है ना डेमोक्रेसी का वायलेशन है, लोगों के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। इज इट ए वायलेशन? है ना, एक पर्सपेक्टिव वो आना चाहिए, लेकिन हमें इसको कमेंट करना है, यानी हमें काउंटर भी करना है। इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट इट इज कॉम्प्लीमेंटरी, है ना, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। अब ये कोई एक क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इज मोर ऑन पेपर लेस इन प्रैक्टिस, बस यही है कि हाउ गुड गवर्नेंस हैज, है ना, नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। हम तो आरटीआई लेकर आ गए, लेकिन आरटीआई को इफेक्टिव नहीं बना रहे, उसको वीकन कर रहे हैं। सिटीजन चार्टर ले आए, लेकिन बहुत को पता ही नहीं सिटीजन चार्टर क्या है। तो दीज आर थिंग्स, दीज आर द एग्जांपल केस स्टडी यू कैन कोट इन द आंसर। फिर गुड गवर्नेंस हैज ए डेमोक्रेटाइजिंग इफेक्ट, है या नहीं है ये हमको पता है। हाँ, डेमोक्रेटाइजिंग इफेक्ट है, पार्टिसिपेशन बढ़ा, कंसेंसस ओरिएंटेशन बढ़ा। ठीक है, फिर एनपीएम में भी क्या सिमिलैरिटी है? जैसे आइडियोलॉजिकल क्या है, नियो लिबरल, दोनों का सोर्स तो सेम ही है, नियो लिबरल फिलोसफी, तीनों इकोनॉमी एफिशिएंसी पे भी बात करता है दोनों, है ना, तो दोनों ही लिंक भी है। डिफरेंसेस होगा, जैसे ये कस्टमर पे फोकस कर रहा है, ये सिटीजन पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे मॉरल वैल्यू है ना, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यू पे है, भाई स्टेट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को कम करता है इधर एनपीएम, लेकिन ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। तो दीज आर की टर्म्स, एक दो टर्म्स याद रहेंगे तो आंसर लिखना, ऑब्जेक्टिविटी आता है आंसर, है ना, और एक प्रेजेंटेशन भी काफी इंप्रूव होता है। तो गुड गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, आजकल कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है सर, इस पे भी क्वेश्चन बनाते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये इंडियन इनोवेशन है ना, तो देखो इंडिया ने भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। तो या इफेक्टिवली इन करना है तो कैसे गवर्नमेंट को मिनिमाइज करना है, मिनिमम रोल होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सारे स्टेक होल्डर मिलकर काम करना है, गवर्नेंस को मैक्सिमाइज करना है, ना कि गवर्नमेंट को मैक्सिमाइज करना है। पहले क्या था, वेलफेयर एरा में गवर्नमेंट को मैक्सिमाइज कर रहे थे, गवर्नेंस को मिनिमाइज कर रहे थे। अब उल्टा हो गया, गवर्नमेंट को खत्म करो और गवर्नेंस को बढ़ाओ। ठीक है, तो रेड, जैसे रेड कारपेट, नोट टेप, दीज आर द इंडियन टर्म्स, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो प्रगति इनिशिएटिव, वन डे गवर्नेंस भी है कि सारे सेक्रेटरी से रिपोर्ट लिया जाता है। इंडिया में गुड गवर्नेंस को आर्ट की तरह भी डिफाइन करते हैं। तो दीज आर दैट, है ना, एसेंशियल कंपोनेंट। फिर हम लोग कंसेप्ट में वही, आजकल क्या धीरे धीरे इसके कंसेप्ट और अधिक, ग्लोबल गवर्नेंस है, फाइनेंशियल गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, तो कितने सारे टर्म्स में गवर्नेंस एक जेनरिक टर्म है, सिंपल, कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसका प्रीफिक्स बदल बदल के नेटवर्क गवर्नेंस बना दिए, गुड गवर्नेंस बना दिए, ई गवर्नेंस, है ना, नेटवर्क, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, एसोसिएटिव गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। तो दीज आर, अलग अलग मीनिंग दिया जाएगा। जैसे रोड्स है ना, अब ये जरूरी नहीं कि ना यू विल बी नॉट बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम। तो इतने सारे जैसे रोड्स है, उसने 6 कैटेगराइजेशन दिया, 6 मीनिंग दिया गवर्नेंस का। मिनिमल गवर्नमेंट होना चाहिए, एनपीएम, गुड गवर्नेंस, तो वो आइडिया सेम है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो एक रोड का है, उसके बाद है ना बाकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी कई सारे, है ना, प्रॉब्लम क्या, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। तो नॉर्मली क्या है, स्टेट क्या डायनेमिक होता है ना, तो स्टैटिक तो होगा नहीं गवर्नमेंट। आज के कॉन्टेक्स्ट जैसे ओईसीडी डिफाइन किया गवर्नेंस को, क्या इज एन एक्ट ऑफ सोशल बिल्डिंग सोशल कैपिटल। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सोशल कैपिटल क्या है ना, यूपीएससी हैज बीन आस्क्ड, डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस। ये बेसिकली क्या है ना, आपका ट्रस्ट, स्टेट के ऊपर कितना ट्रस्ट है, नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छे तरीके, कंड्यूसिव तरीके से, अपोजिशन प्रोटेस्ट कितना कम है। जितना अधिक लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना अपोजिशन प्रोटेस्ट कम होगा। तो आजकल क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग, गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करना। तो दिस इज लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जैसे फाइल के बदले लाइफ की बात करते हैं ना, तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट भी आजकल आता है। ठीक है, so this is the whole idea of chapter 1 again. Most of the things are going to be repeated in the model answers. ठीक है, इसलिए हमने इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया,
we'll take 2-3 minutes break. Any doubt before we take a break? Anyone? सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Okay, we'll take 2-3 minute का break लेते हैं, and then we'll resume. Okay, you all of you can also review it, and question paper है ना, निकाल के आप बैठ सकते हैं. Okay, सोने चाहिए. ठीक है, we'll begin with the model answer now. देखो अभी जो कंटेंट हमने पढ़ा ना, सेम कंटेंट अगेन थिंग्स विल बी रिपीटेड. जैसे अपन लेते हैं क्वेश्चन से. हाँ देख. ओके, स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? कैन एनीवन कंफर्म? यस सर. ओके, ठीक है. तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? गवर्नेंस प्रोवाइड इकोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस. अभी हमने क्या अलग अलग गवर्नेंस के पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ लिया है ना. गवर्नेंस क्या है, क्यों है, के कब आया, है ना. गवर्नेंस को अलग अलग कॉन्सेप्ट से हमने लिंक किया. गुड गवर्नेंस से लिंक किया, एसडीजी से लिंक किया, है ना. उसके बाद फिर गवर्नेंस को तो अलग अलग तरीके से हमने कनेक्टिविटी देखा. तो अब ये क्वेश्चन करा है सिंपल इलुसिडेट मतलब सिंपल ओपन अप करके इसको समझाना विद सम एग्जांपल. ठीक. तो किस प्रकार से गवर्नेंस जो है गुड गवर्नेंस के लिए एक इन इकोलॉजी प्रोवाइड कराता है. तो दैट मीन्स हाउ गवर्नेंस बिकम्स फैसिलिटेटर ऑफ गुड गवर्नेंस. कैन बी इंटरप्रेट द क्वेश्चन कि हाउ गवर्नेंस फैसिलिटेट गुड गवर्नेंस, हाउ गवर्नेंस create an ecosystem for good governance. So what are the way in which governance is creating platform for adoption of good governance, incorporation of good governance feature? So how does it provide a ecology, an ecology? That is the question, crux of the question. ठीक है. तो बेसिक्स आपको सम बेसिक्स लिखना है. फिर कैसे ट्रांसफॉर्म करता है गवर्नेंस टू गवर्नेंस हो गया, फिर गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस. यानी वर्ल्ड बैंक का जो प्री कंडीशन हमने देखा ना, 4 प्री कंडीशंस, या अलग अलग एजेंसीज, या हमने देखा कि प्री कंडीशंस होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो देयर आर सम प्री कंडीशंस. ठीक. तो वही गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन. तभी तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? वैल्यू एस्पेक्ट है, क्वालिटी एस्पेक्ट. ठीक. तो दैट सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली यू हैव टू आंसर. और क्योंकि है ना 10 नंबर वाले में तो ज्यादा स्कोप भी नहीं है, तो आपको लिमिट करना है कंटेंट को. तो इसलिए देखो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन, किसी एक का डेफिनेशन, वर्ल्ड बैंक है, यूएन का डेफिनेशन है, यू शुड बी एबल टू ब्रिंग आउट. तो हमने क्या वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन देखा ना, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, ताकि उसका जो इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्स है. तो सर ने एक डेफिनेशन लिया है. ठीक. सिंपल जो जेनरिक सर ने नोट्स में लिखा था, कलेक्टिवली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. ठीक. तो गवर्नेंस प्लस हो गया. तो सिंपल सेम वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट है, रिस्पॉन्सिव टू द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, नथिंग न्यू, है ना. सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड. तो दिस इज हाउ यूज द कंटेंट ऑफ योर क्लास नोट इन द आंसर्स. ठीक है. जो टेक्निकलिटी होगा हम लोग डील करेंगे. तो रफली द सेम आइडिया इज गोइंग टू. अब जैसे मान लो 6 पैराडाइम भी है ना, तो ये क्या डिसिप्लिनरी. अब ये जेनरिक जीएस में कोई नहीं आंसर में, इंट्रोडक्शन में कोई लिखेगा जीएस में तो इसको कोई लिखेगा नहीं. ये तो 6 पैराडाइम है ना. तो दिस इज हाउ यू मेक द गवर्नेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना. पवेड में जो लिखते हैं जीएस टाइप आंसर मत लिखो, है ना. मेनी टाइम्स वी आल्सो कमेंट, हमने भी कई बच्चे को फीडबैक दिया कि डोंट डोंट मेक इट जीएस टाइप, या जीएस टाइप आंसर अवॉइड करो. तो व्हाई दिस कमेंट्स आर बिकॉज वी डू नॉट ऐड द पवेड स्पेसिफिक कंटेंट. ये 6 पैराडाइम कितना इसको पवेड से लिंक कर दिया. ठीक. और इसका इन्फ्लुएंस है ना, एज इन्फ्लुएंस के कारण गुड गवर्नेंस के मर जाता है, बैकग्राउंड सेट कर दिया. फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, है ना. ये अभी कई बार कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता. ये कॉन्टेक्स्ट भी हम पवेड में भी यूज करते हैं, पवेड में ही यूज करते हैं नॉर्मल. जीएस में हम लोग नहीं, है ना, उतना यूज नहीं करते हैं. तो जैसे 1989 के पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने जानता है, फेलियर था, रिस्पॉन्सिबल था. बाद में जाके, है ना, जब ये वर्ल्ड बैंक ये सब आया तो उसमें कई सारे 3 रिपोर्ट लेके आए, सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस. अब ये शिफ्ट हो रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नेंस. अल्टीमेटली क्या, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इस पे होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट ये था, एलपीजी है, न्यू राइट फिलोसफी है ना. बिग वी डोंट नीड big government, but we need effective governance, we need better governance. That is the whole idea, है ना. philosophy यही है, we don't need big government, but we need better governance, effective governance. अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, है ना. इसलिए सर ने अब इतना कॉन्टेक्स्ट जैसे है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट दिस ऑन ऑल दिस कंटेंट इन योर आंसर्स, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है. इसमें ना आपको है ना लिमिट करना है. जैसे ये बना दिया आपने, या थोड़ा सा ब्रीफ ना एलपीजी का ये बैकग्राउंड दे दिया, तो है ना यू शुड बी एबल टू ब्रिंग आउट सम कंटेक्स्ट. मॉडल आंसर हम लोग जो बनाते हैं,
है ना, हम लोग जो बनाए तो लास्ट 2 ईयर से है, 3 साल से। तो इसमें हम लोग क्या डिटेल्ड देते हैं कंटेंट, सो दैट यू नो यू आर एबल टू एटलीस्ट कनेक्ट विद सम ऑफ दिस कंटेंट, है ना। कुछ कंटेंट तो याद होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे पूरा बुक है, सब मटेरियल है, उससे बना रहे हैं। तो वी ट्राई टू गैदर ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, पहला कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर गवर्नेंस कैसे गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड कराता है, दिस इज हाउ यू नो वी हैव टू यू नो। अब उसमें डायग्राम, सर बोलते हैं डायग्राम बना दो मॉडल आंसर में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे वही सेम जो कॉपी में देखा ना, ये स्टेट मोनोपोली था, उसको हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया और फिर इसको दिखा दिया तीनों सेक्टर किस प्रकार से कोलेबरेट कर रहा है। अब गुड गवर्नेंस का फीचर भी है ना, टेबुलर फॉर्म में, ये जो सारा फीचर्स हम लोग पढ़ते ही ऑलरेडी गुड गवर्नेंस। तो यहाँ देखो कितना फ्लो चार्ट कितना सही बनाया गया है, गवर्नमेंट अंटिल 1980s, और गवर्नेंस है, फिर गुड गवर्नेंस। So this is how flow charts can be used, diagrams can be used, and then you can use the various reports tabular बना के, है ना, इसके की एक दो फीचर लिख दिए, सारे सारे फीचर्स नहीं लिखने हैं, एक दो फीचर्स लिख दिए। कनेक्टिंग सेंटेंसेस, कई बच्चे को हम कमेंट किया था कि राइट द कनेक्टिंग लिंक, जैसे कनेक्टिंग क्या है, ये जो है कि ये कनेक्टिंग पैराग्राफ भी हो सकता है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन फॉर्म में भी बना सकते हैं। हाँ, हेडिंग सब हेडिंग जो हम लोग बोलते हैं, यूज द हेडिंग एंड, तो डिफरेंशिएट करना है कि हाँ इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इंट्रोडक्शन। बॉडी में आपको ना एक तो बेसिक आइडिया दे दिया, बेसिक्स इसको हम सर जो रिफर करते हैं, बेसिक्स, बेसिक्स, दिस इज द बेसिक्स। द कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट ब्रीफली लिखना है, ठीक। और उसके बाद हमको मेन क्वेश्चन का जो ये डिमांड है, दिस इज हाउ मोस्टली हम जैसे 10 नंबर है, हम 5 से 6 तक जो मार्क्स है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें ना आपका 3% है ना, ये 3 से 4 नंबर इस पे डिपेंडेंट करता है, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द, नॉर्मली आवर स्ट्रेटजी इज, है ना, वी डोंट नो, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है 250 प्लस स्कोर करना, इट्स बिट डिफिकल्ट। तो नॉर्मली यूपीएससी आल्सो फॉलोज द आइडिया है ना, 50% से ज्यादा स्कोर करना मींस यू हैव टू राइट समथिंग एक्सेप्शनल या बेटर आंसर्स, ठीक है। तो नॉर्मली है ना, यू शुड नॉट गेट डिस्करेज बाय द मार्क्स, many times marks it may appears very harsh, but you should not get discouraged, प्रैक्टिस करना है। बस ये देखना है कि अगर एग्जैक्ट कंटेंट नहीं चाहिए, है ना, जो मॉडल आंसर में, यू शुड बी एबल टू रिलेट टू इट, है ना, सम आइडिया शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर। दिस इज हाउ यू आल्सो डू द सेल्फ इवेल्युएशन, है ना। कई लोग पूछ रहे थे कि सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करें। अगर आज जो आंसर आपने लिखा ना, और जब क्लास शुरू हुआ था उस समय जो आंसर लिखा होगा, और आज जो आंसर लिखेंगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना। तो यू विल आल्सो रियलाइज कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, बाकी जब पेपर 2 के भी कंटेंट ऐड करना शुरू करोगे, तो दैट विल बी द वैल्यू एडिशन पूरा, है ना। व्हेनेवर यू राइट द आंसर यूजिंग द एंटायर नॉलेज ऑफ पबेड, नॉट जस्ट चैप्टर 1 और 2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट। यूपीएससी ने क्या किया, अलग अलग चैप्टर बांटा हमारे कन्वीनियंस के लिए, है ना। लेकिन पबेड का जो आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना कब है, वो इंटरलिंकेजेस क्या है, पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करना। अब इसमें ना कई सारे इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को मेंशन करना है, ठीक। सर ने इतना, ये जो आंसर इतना डिटेल किया ना हम लोग जो बनाया, इसमें मेन टारगेट ये था कि गवर्नेंस पे जो भी क्वेश्चन आता है ना, यू गेट द कंटेंट। मोस्टली क्या होता है कि कई सारे जो लुकमान सर के स्टूडेंट नहीं है, है ना, मोस्टली दे इट इज बेनिफिशियल, है ना, फॉर देम एज ए वैल्यू एडिशन। लेकिन अंसारी सर तो क्लास में ही सारा कंटेंट लगभग लिखा दिए, ठीक है। तो कैसे इकोलॉजी प्रोवाइड कराता है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के फीचर हो गए, है ना, और गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के सारे की फीचर्स पे एक एक दो दो एग्जांपल हो गया। यानी प्री रिक्विजिट है, गवर्नेंस अगर फ्लोरिश करना है तो क्या है, ये उसी को एक्सप्लेन किया है ना, क्वेश्चंस को रिएटरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। कैसे ये जो डायग्रामेटिक है ना सर जो बनाते हैं, रिफर भी करते हैं, दिस इज डायग्राम, एंड ये हो गया, उसके बाद फ्लो चार्ट हो गए, है ना। तो दिस इज हाउ यू मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर, ठीक। तो इसमें वही है कि एविडेंस, मतलब कुछ हमने एविडेंस दिया, है ना। एविडेंट के आधार पे क्या देखे कि भाई वेस्टर्न कंट्री ये सब गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, स्टेक होल्डर अप्रोच, है ना। तो ये हुआ लैक ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में क्या हुआ कि अभी क्या 1990s में कॉर्पोरेट जो स्टेट आ गया था, उसमें क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न ये सबको नहीं दिया गया। फिर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट लाया गया, दिस इज व्हाट पेपर 2 टाइप कंटेंट, या इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, है ना। एप्लीकेशन जो बोलते हैं, देखो कितने स्वच्छ भारत अभियान, नरेगा, ये सब ऐड इसलिए हमने किया था कि ताकि आप ना अप्लाई कर पाओ जो गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस का बात हमने किया, कि जितने भी प्रोग्राम स्कीम आजकल हम जो देख रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम लोग क्या है ना कि लास्ट में कंक्लूजन, अब ऐसा नहीं कि सेग्रीगेटेड टर्म्स तो है नहीं, है ना, कि हाउ इट प्रोवाइड्स एन इकोलॉजी फॉर द गुड गवर्नेंस। तो लेकिन दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, है ना, सिनोनिमस की भी तरह कई बार यूज होता है, तो इंटरचेंजली भी यूज होता है, ठीक है। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए भी गुड गवर्नेंस जरूरी है
है ना। इकोलॉजी अगर गुड गवर्नेंस है तो ऑटोमेटिकली गवर्नेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। यानी अगर गवर्नमेंट का फिलोसफी क्या है, गुड गवर्नेंस है, तो क्या होगा, गवर्नेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस किसका था, एनपीएम न्यू राइट फिलोसफी का था। ठीक, तो ये है कि फिनोमेना क्या करता है, बोथ गुड गवर्नेंस, है ना। तो यही इंटरचेंजेबल भी जेनरिक कंसेप्ट है, रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंटारिटी है ना। तो ऐसा नहीं सिलोज में हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते देयर इज अ वाटर टाइप। तो ये एक फैसिलिटेटर है ना, इनेबलर है, और हमको ऐसे आंसर लिखना है। तो आर यू ऑल able to see how the content of the class notes is useful here? Are you able to relate it? Yes, sir. Yes, sir. है ना, देखो किस प्रकार का ना, नथिंग न्यू। तो एक मतलब 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा आपने कुछ नया चीज। इसलिए हम जो क्लास नोट्स पे फोकस क्यों कर रहे हैं कि क्लास नोट्स का कंटेंट या तो क्लास को है ना क्विकली रिव्यू करके खत्म करके, या तो वही चीज इधर बताएं, या क्लास नोट्स को डिटेल में कराते हैं, ताकि है ना सेम मतलब क्वेश्चंस वहां भी हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि कैसे लिंकेजेस है, कितने टाइप के बनते हैं। तो व्हेनेवर यू गेट द क्वेश्चन है मल्टीपल वे से, व्हाई, है ना, हाउ, तो देयर आर मल्टीपल री इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं हम लोग, है ना, माइंड मैप बनाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, या गोल्डन सीट तैयार करना, जो जीराजपुर सर बोलते थे कि भाई 4 पार्ट में ना सारे कंटेंट को बांट दो। तो आपको ना कंटेंट पे क्वेश्चन है, या कंट्रीब्यूशन पे है, रेलेवेंस पे है, क्रिटिसिज्म पे है, या अब उसका जब एक बार ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो जाता है, तो देन यू डेवलप द इंटरलिंकेजेस, है ना। पेपर 2 कंपोनेंट जो एग्जांपल हम लोग दिए, दैट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 2 का नाम ही है था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज हाउ यू लिंक द, है ना, पेपर 2 का जो एग्जांपल नरेगा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब है। तो स्वच्छ भारत में सबको लाया गया ना, सारे प्लेयर इन्वॉल्व हो गए। नरेगा में भी देखो सिविल सोसाइटी सबका भी एक्टिव, बेटी बचाओ में भी कितना सिविल सोसाइटी का रोल रहा। तो गुड गवर्नेंस के सब है ना सक्सेसफुल एग्जांपल्स। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सक्यूज थोड़ा, मी सर, या एक्सक्यूज प्लीज। मी हाँ सर, जैसे अंसारी सर हैज टोल्ड कि सारे चैप्टर्स के ऐसे चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इससे मतलब वैल्यू एडिशन करना है, तो हम्म। मतलब वो कैसे होता है, लाइक हाँ मतलब देखो, रफ नोट्स तो हम उससे बना सकते हैं नोट से तो, बट हाँ हाँ इतने सारे मॉडल आंसर से कैसे वैल्यू एडिशन होगा और कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, कई लोग के मन में डाउट है ये। तो देखो क्या है ना, क्लास का जो कंटेंट था बहुत ही डिटेल में है। कई जगह तो देखें कि बहुत सब्जेक्टिवली सर ने चीजों को एक्सप्लेन किया है, और वही चीज फ्लो चार्ट में भी सर ने बनाया था, या डायग्राम में बनाया है ना। तो जो फ्लो चार्ट या कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स, क्योंकि मेन नोट्स तो आपके पास है ही, है ना, कीवर्ड्स आपको फिल्टर करने हैं क्लास नोट से। ठीक है, और वो एक क्रोनोलॉजी में होगा कि चैप्टर 1 से लेकर कितने सारे टॉपिक, सब टॉपिक्स, और किस ऑर्डर में सर ने कराया। तो सारे कीवर्ड का लिस्ट आपके पास हो गया। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, जो कीवर्ड्स है ना, मतलब ऐसा नहीं कॉम्पैक्ट नहीं लिखना है, थोड़ा स्पेस भी डाल के, कि जैसे आप जब मॉडल आंसर सॉल्व करते हैं, तो जैसे गवर्नेंस का हमने पढ़ा, गवर्नेंस क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में कराया है, तो यू विल हार्डली फाइंड देयर आर न्यू कंटेंट इन द मॉडल आंसर, है ना। मोस्टली हम लोग जो आंसर बनाते हैं, तो दैट वी रिफर टू द क्लास नोट्स ओनली, है ना। डायनेमिज्म आता है जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जो है ना एग्जांपल हमने ऐड किया था, ये स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ वाला जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जांपल जो हमने देखा इधर, है ना। तो दिस इज वैल्यू एडिशन पार्ट इन योर क्लास नोट। ये क्या है कि मॉडल आंसर, है ना, कई बार सर जो है डायनेमिक एस्पेक्ट बाद में पेपर 2 कराते हैं, वहां से ऐड करना है। जो फ्लो चार्ट डायग्राम में कई जगह बताते हैं सर, कई जगह मॉडल आंसर में सर ने, अब ये सर ने इस तरह से नहीं बताया, मान लो टेबलर फॉर्म में नहीं बताया कि करेक्टरिस्टिक, तो दिस इज हाउ यू नो मॉडल आंसर में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक है, लिस्ट बनाना है ना, उसके कीवर्ड्स को फिल्टर करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो मास्टर नोट है वो आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए घबराना नहीं है कि हम सारे सेंटेंस लिखना शुरू कर दें, या सारे पूरा पूरा फीचर्स लिखना शुरू कर दें, नहीं। जस्ट 2-3 जो एकदम उसको यूनिक बनाता है, उस कंसेप्ट को यूनिक बनाता है। दैट्स वाई, है ना, जितना क्रिस्प नोट होगा, जितना हैंडी होगा ना, उतना आपके माइंड में पिक्चराइजेशन, होलिस्टिक पिक्चर तभी डेवलप होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस या सर, यस। ओके ओके ओके, है ना। तो ऑल ऑफ यू कैन डू, है ना, मेनी ऑफ द यू फेस यू नो दिस प्रॉब्लम, कि कीवर्ड्स बनाने, कीवर्ड्स के बाद आपको मास्टर नोट तो आपके पास ही है ना, बीच बीच में मास्टर नोट्स पढ़ना है, रिफर भी करना है जब समझने है। और जब क्वेश्चन देखो तो ट्राई टू रिलेट, यूज द कंटेंट ऑफ योर कॉपी आंसर, है ना, क्लास नोट्स इन द मॉडल, इन द आंसर्स। तो दिस हाउ एक्सक्यूज यू मी नो। सर। हाँ हाँ प्लीज। सर आप एक बार गोल्डन शीट के लिए जिक्र कर रहे थे, तो आप वो शेयर कर देंगे क्या सैंपल के लिए हमें, कि हमें कैसे किस तरह से फॉलो करना है?
अच्छा ठीक है, मैंने एक दो कैसे सैंपल जैसे अप्रोच रख सकते हैं थिंकर हम। वाला पार्ट है ना, थिंकर वाले पार्ट में कुछ आपको ना दिखाएंगे किस जी प्रकार सर, शॉर्ट। थोड़ा इजी हो जाएगा हमें समझने में कि हमें ठीक है कैसे ठीक है, बनाना जैसे है। मान लो टेलर है ना, टेलर पे उसके कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। जैसे मान लो टेलर है, एक एग्जांपल दे ही देते हैं। टेलर है, टेलर को अगर हमने डिवाइड कैसे किया, तो टेलर में हम लोग देखते हैं पहले कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या, कीवर्ड क्या क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, डेमोक्रेटाइजेशन है, एफिशिएंसी, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर आता है उसका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये था रूल ऑफ थंब, है ना, साइंस, और कंट्रीब्यूशन में उसके सारे फीचर्स प्रिंसिपल्स डाल दिए। फिर उसका हमने देखा क्रिटिसिज्म, कई सारे एंटी टेलर या टेलर फिलोसफी को क्रिटिसाइज किया गया। फिर बाद में रेलेवेंस भी देखते हैं। तो दिस इज हाउ कैटेगराइज, चार पार्ट में बांट दिए। और एक व्हाइट शीट पे चारों थिंकर के चारों कंपोनेंट के कीवर्ड्स, और कंट्रीब्यूशन भी लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखना है, हिंट लिखना है ना। मेंटल रेवोल्यूशन अपने आप में समझ में आ जाता है। या सोल्डरिंग कॉन्सेप्ट डिम सिंपल है ना, जो दो टाइप का, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, जस्ट मेंशन सोल्डरिंग, मेंशन मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, क्रिटिसिज्म में कई सारे थिंकर है, वेबर है, इसी तरह। तो दिस इज द मॉडल, तो विल शेयर इट, है ना, एक दो दिन में। सी मतलब, या फिर जो इस वीक में हम लोग है ना थिंकर करेंगे, तो उसके बाद है ना मॉडल आंसर कैसे बनाना, ये जो मॉडल टाइप के गोल्डन सीट्स होते हैं ना, विल शेयर इट सम ऑफ देम। ठीक है, इज इट फाइन? यस सर। ओके। तो अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी क्या बिगिनिंग है, तो जनरल एस्पेक्ट आल्सो विल बी टेकिंग, है ना, क्योंकि है ना देयर आर सम ऑफ द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग, यू आर नॉट एबल टू सर डिस्कस। हाँ हाँ सर प्लीज। हम्म। सर while राइटिंग आंसर्स, तो जब मैं कोर्स में एनरोल था हाँ तो हाँ उसमें हाँ। आपने बोला कि पबैट के होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से आप राइट आंसर्स। सो राइट। ओवर द जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे थे वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ रहा था, तो यू टॉक्ड बिल्कुल। अबाउट इंटरलिंकिंग, राइट? बट सर ने क्या हाईलाइट किया मतलब मेरे आंसर्स में कि मतलब देयर इज इंटरलिंकेजेस, देयर आर हम्म। इंटरलिंक, देयर आर एग्जांपल्स, बट द फैक्ट इज दैट वो उस कोर डिमांड को उसमें डेप्थ में नहीं जा पा रहा। सो इफ वी मतलब द बेसिक क्वेश्चन इज दैट हम वो कैलकुलेट कैसे करें कितना डेप्थ में जाना है और कितना इंटरलिंक करना है, बिकॉज ज्यादा इंटरलिंक करेंगे या फिर ज्यादा होलिस्टिक हाँ पर्सपेक्टिव हाँ डालेंगे हाँ। वो पासिंग रेफरेंस हो जाता है उस पर्टिकुलर करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट। पर हाँ ज्यादा इन करेक्ट। डेप्थ में जाएंगे तो वो सोनली उसी टॉपिक के आसपास रहेगा। हाँ, तो तो जैसे अपन कमेंट लिखते हैं ना, ब्रिंग आउट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ, है ना, डिमांड या जो भी हाँ, एस्पेक्ट। अब बहुत आंसर ये वाले नहीं नहीं, हम लोग को भी सब डिस्कस है ना, तो हम लोग भी कई लोग को ऐसा कमेंट, ब्रिंग आउट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द की डिमांड, या इस एस्पेक्ट को आप, है ना, ब्रॉडन दिस पार्ट, या मेक इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस पार्ट। इस तरह का कमेंट भी कई लोगों को देते हैं। उसका यही होता है, जैसे इसका की डिमांड ये है। अब क्या होता है, कुछ लोग का आधा, एक पेज, डेढ़ पेज तो इसी पे खत्म हो जाता है। लास्ट में कंक्लूजन से पहले एक दो पैराग्राफ इस पे आंसर लिखते हैं। आर यू एबल टू गेट इट? कॉन्टेक्स्ट में ही इतना पेज इन्वेस्ट कर दिया, एक पेज से जैसे 10 मार्क्स के हैं, तो वन एक पेज या डेढ़ पेज तक तो कॉन्टेक्स्ट ही चल रहा है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसी सब में फल। जो मेन डिमांड है, डिमांड पे हम लोग का कई बार क्या होता है, मेन डिमांड आते आते स्पेस कम हो जाता है ना। तो हमको एकदम मेन डिमांड को ध्यान में रखना है, कि जो अल्टीमेट क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है, दिस इज मेन डिमांड। अगर ये एड्रेस नहीं किया, तो फिर भी है ना, कितना भी लिख दो, आपको 2, 2.5, 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिले, जब तक ये एस्पेक्ट को अच्छे से एड्रेस ना किया जाए। तो दिस इज मेन डिमांड को पहले क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का दो डिमांड होता है, एक कोर डिमांड है और एक सेकेंडरी डिमांड है, पेरिफेरल डिमांड भी जिसको बोलते हैं अपन। कोर डिमांड क्या है, जो हमने हाईलाइट किया। सेकेंडरी डिमांड या पेरिफेरल डिमांड होता है उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड, उसका रेलेवेंस, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड, दीज आर द वैल्यू एडिशन। दिस इज कोर डिमांड ही एड्रेस नहीं किया, सिर्फ हमने है ना पेरिफेरल डिमांड्स को एड्रेस किया, तो अगेन आंसर बिकम सैलो। कई बार सैलो आंसर्स है, जेनरिक को है ना आंसर है, ऐसा हम लोग कमेंट करते हैं, जीएस टाइप आंसर है। क्यों? यस क्योंकि सर। हम लोग कंटेक्स्ट और इस सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कोर डिमांड को एड्रेस करना है ना, हर क्वेश्चन का ये टारगेट होना चाहिए। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। कई लोग कॉम्पी में कमेंट्स देखे होंगे, तो इसी टाइप के कमेंट्स आते हैं। ठीक है, या कैन वी मूव? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर प्लीज। एक और प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग के टाइम पे हम्म। कि समझ नहीं आता है कई बार इंसान इतने प्रेशर में होता है कि हर चीज को एड्रेस नहीं कर पाते, बट अपने आप को बियॉन्ड उससे लेकर जाके है ना फेच चलो। करने के लिए मार्क्स को, तो फिर कोशिश करते हैं कि सब चीज जितनी भी कोशिशें थी कि कोई भी कमेंट ना रह जाए, कोई भी नेगेटिव कमेंट ना मिले, तो वो अच्छा, कोशिश रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ तब भी छूट जाता है। ये तो फिर देखो। इस तरह की चीज को अवॉइड करने के लिए तो हम्म। हमारा तरीका क्या रहना चाहिए कि ये चीज होगी, फिर अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये हमारा आंसर टोटली कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एनालिसिस पार्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया, सब कुछ हो गया।
बट सर वो सब कनेक्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि इतना हम एक आंसर को बेस्ट बनाने के चक्कर में बाकी के भूल जाता है इंसान, तो वो करेक्ट। देखो प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल, एक तो है कि टाइम फ्रेम है ना, 7 मिनट 8 मिनट जो टाइम अपन बांटते हैं ना हर क्वेश्चन के लिए, एक तो वो प्रैक्टिस करना है, जब भी डेली आंसर प्रैक्टिस होना। जब जितने भी हमने टेस्ट चेक किया ना, कई लोग क्या है 5 घंटे में आंसर लिख रहे हैं, 4 घंटे में आंसर लिख रहे हैं, दैट बिकम्स यूजलेस, है ना। दैट इज नॉट प्रैक्टिस। जस्ट इफ यू आर राइटिंग द टेस्ट फॉर इवेल्युएशन, you must write within 3 hours. That is the first if you really want to take advantage of the real, if you really want to assess yourself in true sense। एक तो 3 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है ना, कई सारे टॉपर इसी तक किशोर और बाकी लोग क्या बोलते हैं, पेन्स डाउन, 3 आवर हो गया तो पेन्स डाउन, खत्म, चाहे जितना लिखो। एक तो तुम्हारा एक्चुअल असेसमेंट वहां से आता है। अगर आप उसी आंसर को 4 घंटे 5 घंटे में लिख रहे हो ना, बेस्ट आंसर भी लिखो, तो यू आर नॉट effectively assessing yourself। That is for practice। You can practice for 5 hours 6 hours, but whenever you are writing the test for the evaluation, है ना, अब इतने पैसे लगाने के बाद टेस्ट लिखते हैं ना, वी फील वेरी सिंपैथेटिक कि भाई इतना पैसा लगा रहे हैं और टेस्ट लिख रहे 4 घंटे 5 घंटे में, तो रियल असेसमेंट भी नहीं आ पाता है। एक्चुअली जो मेंस में टेम्परामेंट चाहिए ना, ये शुड बी वेरी मच, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एनी क्वेश्चंस, देयर आर ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और उसका एनालिसिस या सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट जो कोड डिमांड हमने बात किया, सब्जेक्टिव होता है एनालिसिस, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द जो लेटर है ना, टेल वर्ड्स है, या कमांड क्या है ना, जो लेटर टेल वर्ड्स होते हैं ना, जैसे इलुसिडेट है, एग्जामिन है, क्रिटिकल एग्जामिन, ठीक है, उससे हमें ध्यान रखना है। ठीक, ओके, इज ओके इट सर। क्लियर? ओके, चलो, एनीथिंग एल्स? कोई ना, अगेन है ना, टुमारो विल बी कंप्लीटिंग आई थिंक, है ना, फर्स्ट क्लास है Q&A का, तो बेसिक डाउट्स होते हैं ना, विल बी टेकिंग सम ऑफ देम। तो कोई इशू नहीं है, अपने को जल्दी नहीं है, पहले एक बार क्लैरिटी आ गया ना, तो फिर तो है ना स्पीड अप हो जाएगा अपने आप। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या डिमांड है, डिफाइन। डिफाइन क्या करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमने डिफिनेशन वाला कंटेंट देखा, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टली द कंटेंट विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करा है, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अंडरगोन चेंजेस। तो पहले इसमें क्वेश्चन आएगा, अब मन में क्या करना है, डू यू थिंक, है ना, डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अंडरगोन चेंजेस। अब ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना, आंसर फ्रेम कैसे करना है, दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग कि वेदर पवेट हैज गॉन अंडर चेंजेस, मीनिंग हैज गॉन अंडर चेंजेस, हाउ इट हैज अंडरगोन चेंज, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पवेट। तो है ना, एक बार आप इस डायरेक्शन में सोचने लगते हो ना, तो यू डेवलप लॉट ऑफ ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, मैक्रो पर्सपेक्टिव, दोनों आइडिया आता है। तो सिंपल स्टेटमेंट को री इंटरप्रेट करना है ना। री इंटरप्रेट कैसे करेंगे, एक तो है ना विड्रो विल्सन से लेकर अब तक का क्या करंट का स्टेटस क्या है पवेट का, उसमें भी देख रहे हैं मीनिंग हर जगह चेंज हो रहा है। डेफिनेशन में भी है ना, कई सारे डेफिनेशंस थे, है ना, मेंटल पैरालिसिस से लेकर ड्वाइट वाल्डो का, तो थर्ड वर्ल्ड जो मेंडोविक थर्ड कॉन्फ्रेंस था उसने भी डिफाइन किया। तो डिफाइन करना है टर्म, तो ये अपने ऊपर है कितना हम ब्यूटीफुली चीजों को प्रेजेंट करें आंसर में। ठीक है, तो बेसिक कंटेंट डेफिनेशन में अपन क्या स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, स्टार्टिंग जैसे इंट्रोडक्शन है ना, तो एक्शन पार्ट जो विजुअल पार्ट है, स्टेट इन एक्शन, है ना, गवर्नमेंट इन एक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया पीवाईक्यू में, है ना, डिफाइन या पवेट एज ए स्टेट इन एक्शन, गवर्नमेंट इन एक्शन। ठीक है, तो सैम्पल एक्शन पार्ट, सेम नोट का जो कंटेंट है वहां भी सेम कंटेंट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, एक में अपन मीनिंग में और भी देखे, मीनिंग में ब्रॉडर स्कूल, नैरो स्कूल, पोस्टकॉब स्कूल, है ना, सब्जेक्ट मैटर स्कूल, तो मीनिंग तो पवेट एज ए डिसिप्लिन, पवेट एज ए एक्टिविटी, तो ये सब कंटेंट हम वहां पे भी देखा था। ठीक है, तो अब देखो इसमें इंट्रोडक्शन डिफाइन कर दिया, फिर कॉन्टेक्स्ट 80-87 का जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे कैसे यहाँ से पवेट एज ए डिसिप्लिन स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड, तो वो जैसे विल्सन का डेफिनेशन है, तो एक ना डायकोटोमी एरा का डेफिनेशन हो गया। ठीक, उसके बाद एलडी व्हाइट का डेफिनेशन है, 1940s हो गया, 1940s का 1960s में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार निग्रो निग्रो का हमने भी बोला था, डेफिनेशन क्या है, बहुत ही ब्रॉडर है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, पब्लिक पॉल एप्पल बाय क्या करेगा, पवेट को पॉलिटिकल साइंस से इक्वेट कर दिया, तो हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, है ना, कोई भी डेफिनेशन आता है कॉन्टेक्स्ट और उस टाइम के हिसाब से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट और टाइम इंपॉर्टेंट है, एक दो डेफिनेशन हमने कहा, यहाँ पे हमने कई सारे डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट किया, क्यों, ताकि आप कोई भी एक दो डेफिनेशन यहाँ से उठा लो, है ना, यही वैल्यू एडिशन बेसिकली मोस्टली, है ना, मॉडल आंसर इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ योर क्लास नोट्स। ठीक है, आर यू एबल टू रिलेट इट, है ना, सारे यस कंटेंट तो सर। है ना, मॉडल सब तो क्लास नोट्स में था ही, अगर क्लास नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया,
कीवर्ड्स है, जैसे अब निकोलस हैंडी आना चाहिए तो उसका एमोर्फस थ्योरी आना चाहिए, है ना, माइंड में एमोर्फस जो निकोलस हैंडी ने डिफाइन किया, या मेंटल पैरालिसिस जो ड्वाइट वाल्डो, जस्ट राइट मेंटल पैरालिसिस ड्वाइट वाल्डो, अब उसको बाकी कॉन्टेक्स्ट आपको पता है ना। सर हाँ हाँ प्लीज। सर इसमें मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो फ्रेज है बेसिकली, तो उसको हम, बिकॉज ओपन एंडेड स्टेटमेंट हो गया, सो आर वी बिल्कुल टेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन और एन एक्टिविटी और देखो बोथ? है ना, मतलब नॉर्मली क्या है कि जब यहाँ पे अंडरगोन चेंजेस है ना, चेंजेस मतलब नॉर्मली हम लोग थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली यानी थ्योरी एंड अप्लाइड एस्पेक्ट दोनों में मीनिंग इसका बदला है, ठीक है। अब इसको हम स्कोप, जैसे स्टेट का स्कोप है ना, उससे भी लिंक कर सकते हैं। मीनिंग किस प्रकार स्टेट से नहीं होता कि मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लिंक टू द गवर्नमेंट इन एक्शन, ये कॉन्सेप्ट है। तो मीनिंग ऑफ पबेट ना नॉर्मली जब भी आंसर हो ना, तो बोथ हम लोग को इस डायरेक्शन सोचना है कि एज ए डिसिप्लिन और एज एन एक्टिविटी, ठीक है। मिक्स्ड मतलब? हाँ, तो मतलब उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ठीक है सर, तो इसमें सर देखो मेजरली इस वैसे अभी डिसिप्लिन इसमें ना बेस्ड? थ्योरेटिकल बिल्कुल नाम पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा मन में, थ्योरेटिकली कैसे है। तो जी सर। पब्लिकनेस वाला जो कंसेप्ट है ना, कि पब्लिकनेस एनपीए के टाइम क्या था, है ना, या एनपीएम के टाइम क्या रहा, फिर पोस्ट एनपीएम या न्यू पब्लिक सर्विस के टाइम क्या रहा, है ना। तो मीनिंग क्या है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एनपीएम अलग था, एनपीएम में अलग था, पोस्ट एनपीएम अलग है। आर यू एबल टू रिलेट इट, पब्लिक स्प्रेड, पब्लिकनेस, पब्लिक वैल्यू, यस सर, यस सर। है ना। तो यानी स्प्रेड और वो जो हमने कॉन्सेप्ट ग्राफ देखा था पब्लिकनेस का, पब्लिक वैल्यू का, तो ये पब्लिक का भी तो मीनिंग है ना अल्टीमेटली क्या है, हाउ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज अंडरगोन। तो थ्योरेटिकल में वो माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। तो डायकोटोमी व्यू भी तो जो डेफिनेशन है, ये भी तो थ्योरेटिकल ही डेफिनेशन है ना, जी सर, जी सर। ठीक है। तो एल डिवाइड का हो गया, मेंटल पैरालिसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं, निग्रो निग्रो तो कॉम्प्रिहेंसिव दिखा था डेफिनेशन, जो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को इनकॉर्पोरेट किया, है ना। इसलिए इसके डेफिनेशन को ब्रॉडर बोलते हैं कि भाई इम्प्लीमेंटेशन भी इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ही थ्योरेटिकल हो गया, ठीक है। एमोर्फस मतलब कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को दिखाता है, और प्रैक्टिस मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब हो गए। थर्ड कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ लिया है, एक्शन भी लिया है और, है ना, प्रोसेस भी लिया है, ठीक। तो अब ये मेंटल जो वाल्डो का, अब इसमें क्या है ना, कीवर्ड जैसे मेंटल वाल्डो का व्यू आना चाहिए, है ना। उसके बाद ये थर्ड कॉन्फ्रेंस का डेफिनेशन आना चाहिए। तो दीज आर द की टर्म्स दैट वी एक्सपेक्ट व्हाइल इवेल्युएटिंग, कि है ना एटलीस्ट एक दो ब्रॉडर जो है ना डेफिनेशन का आना चाहिए, और मीनिंग किस प्रकार चेंज हुआ, कि हाउ चेंजेस द की डिमांड इज, पहला पार्ट तो डिफाइन करना है, सिंपल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीनिंग हैज अंडरगोन चेंजेस, दिस इज द कोर डिमांड ऑफ सेकेंड पार्ट। तो कई बार आंसर में आते फर्स्ट पार्ट है ना एड्रेस किया, सेकंड पार्ट नॉट वेल एड्रेस, नीड टू फोकस ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर, ऐसा कमेंट हम लोग करते हैं। क्योंकि ये अंडरगोन चेंजेस का जो इवोल्यूशनरी फेज है या चेंजेस है 90, आप अलग अलग तरीका है ना, ग्राफ बना सकते हैं, या फिर हम टेबलर बना दिए, टेबल में 90-40 से ये रहा, 90-50 ये रहा, दो तीन बना एकदम पिक्चर, थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी आंसर में लाने से क्या होता है, मार्क्स देना और प्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव हो जाता है। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। सर क्लास नोट्स में भी बनाते हैं कि कितना अलग अलग फेज में क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए सबके, एक एक दो दो, है ना। दिस इज हाउ यू आंसर इट, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इट्स रूट इन द वाशिंगटन कंसेंसस, कितना डिटेल में हमने देखा, क्लास का कंटेंट के अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, स्पेशली पेपर 1 में सर बहुत ही डिटेल में सब कुछ करा रहे हैं। और सर का टारगेट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आंसर, और जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन है ना, 10 year PYQs, normally content is delivered in such a way you are able to answer the 10 year PYQ, और जो सर के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर होते हैं मोस्टली थिंग्स विल बी कवर्ड इन द क्लास नोट्स ओनली, ठीक। एक्सक्यूज तो मी इसलिए सर। हाँ हाँ सर सर प्लीज। आपने जब तैयारी करी थी तो आपने अभी जो मेंस लिखा था उसमें आपने ये क्या नोटिस करा, नोट्स को लेके क्या चीज आपको वही सबसे ज्यादा हेल्प करी? देखो, क्लास नोट्स काफी होता है, क्लास नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है ना। शॉर्ट नोट नहीं है तो लास्ट में रिवीजन नहीं होता है। और दूसरा की आपको जो शॉर्ट नोट, जो हम लोग बार बार शॉर्ट नोट पे फोकस कर रहे हैं या कीवर्ड्स पे ना, कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां बिल्कुल टाइम नहीं होता है ना। ऑन द स्पॉट यू हैव टू राइट, सपोज 7 मिनट 8 मिनट में आपको आंसर लिखना है, तो आपको कीवर्ड्स जो आपके टिप्स पे है ना वही आएगा, ठीक है। दिस इज द मेजर इशूज, है ना। कई ओके लोग ना सर। पता होने के बावजूद भी आंसर नहीं लिख पाते हैं। हाँ, या अदर डाउट एनीथिंग एल्स? है सर, एक डाउट है सर। हाँ हाँ सर बताओ। कमेंट और डिस्कस में बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
देखो कमेंट थोड़ा ओपिनियन बेस्ड है, यू शुड अभी प्रेजेंटिंग सम एनालिसिस या व्यू पॉइंट, है ना। जी और डिस्कस में क्या है कि बोथ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं ना, जब भी अपन डिस्कस करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों चीज देखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो लेकिन कमेंट में जब आता है ओपन एंडेड टाइप का, है ना, व्यू, और क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज इट्स रूट्स इन द वाशिंगटन कंसेंसस। इसमें आप पॉजिटिव निगेटिव तो वैसा कुछ कंटेंट आएगा नहीं, है ना, ओपिनियन आएगा कि हाउ इट इज रूटेड इन। इसमें देख सर रहे फिर हैं वो कमेंट में। हाँ एग्जामिन या क्रिटिकली एग्जामिन से वो डिफरेंस कैसे देखो, होगा? अब वो थोड़ा सा ना, इसमें जो एग्जाम कल जो हम लोग क्या करेंगे उसको भी थोड़ा देखेंगे कि क्रिटिकल एग्जामिन एग्जामिन ये पार्ट भी थोड़ा सा किस प्रकार से डिफरेंशिएट, माइक्रो लेवल का डिफरेंस होता है। जैसे स्पेशली क्रिटिकली एग्जामिन है, इसका मतलब यू हैव टू निगेट द स्टेटमेंट, है ना। मेनी जी टाइम्स यू सर। माइट हैव, है ना, कॉपी में कोई इवैल्यूएशन जब हुआ होगा तो हम लोग कमेंट लिखते हैं कि ट्राई निगेट द स्टेटमेंट, है ना, राइट द कंटेंट। तो यस उसमें सर यस। हाँ, निगेटिंग द स्टेटमेंट मतलब क्या हो, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकल एग्जामिन मतलब उस स्टेटमेंट के काउंटर में अधिक व्यू पॉइंट आना चाहिए। थोड़ा व्यू पॉइंट प्रो डालो, है ना, उस प्रो या प्रो स्टेटमेंट डालेंगे। मेजर फोकस क्रिटिकल एग्जामिन में उसको, है ना, उसके लिमिटेशंस को हाईलाइट करने या उसको क्रिटिसाइज करने में जाना चाहिए। मेजर फोकस जो डिमांड का कंटेंट होता है उस प्रकार। कमेंट है ओपन एंडेड, है ना। ओपन एंडेड मतलब व्यू पॉइंट आना चाहिए, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें ज्यादा कुछ डिबेट तो है नहीं ग्लोबलाइजेशन, लेकिन डिबेट ये है कि ग्लोबलाइजेशन वाशिंगटन कंसेंसस से पहले भी था कि नहीं था। यस। Globalization is not a just Washington consensus phenomenon. It was existing before Washington consensus, है ना। 80s का जो दौर है, 70s, तो ग्लोबलाइजेशन अलग अलग फॉर्म में चेंज हुआ, तो थोड़ा बहुत वो कंटेक्स्ट भी दे सकते हैं कि देयर आर वाशिंगटन कंसेंसस है ब्रॉडली इन द कंटेम्पररी टाइम, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। ठीक है, अदर डायमेंशन जो बोलते हैं सर। ठीक है, तो फरेजमेंट का डेफिनेशन हो गया सेम। वाशिंगटन कॉन्सेंसस का हमने डिटेल में है ना बैकग्राउंड दे दिया। देखो स्पेशली ना मॉडल आंसर का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट रिफर करते हैं ना, तो दे विल बी एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ योर क्लासरूम, है ना। तो मतलब क्योंकि सबके लिए ओपन होता है ना, कई सारे अलग कोचिंग के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं टेस्ट सीरीज में। अब पूरा डिटेल में सर क्लास में कराने लगे तो टाइम तो 4 घंटा लेते हैं, 5 घंटे अभी 10 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो जो इसलिए जो सर के स्टूडेंट है उसको तो समझना आसान हो जाता है, क्विक भी हो सकता है। बाकी लोग के लिए नया कंटेंट, काफी नया कंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ग्लोबलिज्म आइडिया का जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड का आइडिया है उसको कैसे फुलफिल करता है, ये करंट कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या देखा, फ्रेगमेंट का डेफिनेशन। अब स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कैसे पवेड का आंसर पवेड के फॉर्म में बनाए गए, ये देखो किस प्रकार इंट्रोडक्शन किए गए कि ग्लोबलाइजेशन फिनोमेना इमर्ज इन्फ्लुएंस बाय न्यू लिबरल फिलोसफी या न्यू राइट फिलोसफी लिख दिए। थिंकर एक कोट कर दिए, एक दो थिंकर आना चाहिए पेपर 1 के आंसर में। अली फ्रेजमेंट डेफिनेशन मोड क्लास नोट्स में भी देखा, तो उसको एक समरेटिव ओपिनियन भी दे दिया, है ना। तो ब्रॉडर टर्म में आपने किसी एक थिंकर का दिया और लास्ट में एक एनालिसिस टाइप का दे दिया, एक लाइनर, वन लाइनर टाइप। ठीक है, कि ये बेसिकली एक ग्लोबलिज्म फिलोसफी है। वाशिंगटन कंसेंसस ये हमारे समझने के लिए बस, ठीक, समझ, ये तो डिटेल में हम लोग कर ही चुके हैं। फिर उसके कॉन्टेक्स्ट कैसे इमर्ज हुआ 1970s 80s में, देखो अलग अलग थेचरिज्म, रेगनिज्म, पब्लिक चॉइस अप्रोच, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, और वाशिंगटन कंसेंसस में वो हेडक्वार्टर है, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट, क्योंकि ये पता है ना। उसके बाद हम लोग कंसेंसस क्या बना कि न्यू राइट फिलोसफी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एलपीजी है, तो इसने क्या किया, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों आ गया कि पवेट को कैसे इफेक्ट कर रहा है थ्योरी में भी प्रैक्टिस में भी। तो ये हो गया इमरजेंस वाला पार्ट, जो हाउ इट इज इमर्ज, हाउ, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैसे इमर्ज हुआ, है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट वाशिंगटन कॉन्टेक्स्ट कैसे है, वाशिंगटन उससे रिलेट किया। फिर कमेंट पार्ट में तो एक मेजर फैक्टर है ना, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस कि मेजर फैक्टर है वाशिंगटन कंसेंसस। इट इज इनकरेक्ट टू से, है ना। कमेंट यही ओपिनियन, ओपिनियन क्या है कि डू यू कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट, डू यू हैव एनी अदर ओपिनियन, है ना। तो ऐसा नहीं कि वाशिंगटन कंसेंसस इज द ओनली कॉज, है ना, ऑल ऑफ यू आल्सो एग्री, देयर आर अदर, जैसे न्यू राइट फिलोसफी, न्यू राइट तब तो वाशिंगटन कंसेंसस से पहले आ गया, है ना। न्यू राइट फिलोसफी ये सब तो देखे पहले से भी आ चुका है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कमेंट पार्ट, ये कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आंसर जो इवेलुएट करते हैं ना उसमें ये पार्ट एड्रेस नहीं होता है। ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से अधिकतर लोग लिख देते हैं, लेकिन ये पार्ट ना जो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने का वो लेकिन सोच नहीं पाते कई लोग, इसलिए यहाँ पे भी है ना 1-2 नंबर का डिडक्ट हो जाता है। रीजन बिंग कि ये पार्ट आना चाहिए बियॉन्ड वाशिंगटन कंसेंसस भी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये दिखाते ग्लोबलाइजेशन, ये क्या बोथ लेट, है ना। इसमें क्या है कि अल्टीमेटली रोल ऑफ स्टेट वाज चैलेंज, मार्केट फिलोसफी बेस्ड था, न्यू लिबरल फिलोसफी, ये सब। हाउएवर जो स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट आया ना,
उसमें हम लोग क्या अभी पोस्ट, ये तो करंट से कैसे, इसको कहते हैं लिंकेज विद द कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट, है ना। बाद में हम लोग लिखते हैं फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दो, ठीक है, या मतलब आगे कैसे रिलेट करना है। तो दिस इज हाउ, जैसे अभी क्या पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया, है ना, डी बीच में कुछ डी ग्लोबलाइजेशन ये सब भी आया था, तो थोड़ा बहुत हम चाहे तो बाद में हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसका रूट यहाँ पे है, इसके कई चैलेंजेस आ गए, है ना, ब्रीफली लास्ट कमेंट्री पार्ट में ऐड कर सकते हैं कि बाद में ना, जैसे मान लो एंटी ग्लोबलाइजेशन है, डी ग्लोबलाइजेशन है, एग्जाम्पल ब्री एग्जिट हो गया ट्रम्प का, है ना, अमेरिका फर्स्ट वाला पॉलिसी है। तो ये आते हुए आज के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार, है ना, न्यू वाशिंगटन कंसेंसस भी बोलते हैं इसको, है ना, न्यू वाशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। अब वो इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आना चाहिए, कंक्लूसिव, यानी जो कंक्लूजन लिखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हम ब्रॉडर करते हैं कि लिंकेज करते हैं करंट डेवलपमेंट्स कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट से, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर यू एबल टू गेट इट? तो देखो मॉडल आंसर बनाने के पीछे का जो माइंड हम बता रहे हैं, हम लोग जो मॉडल आंसर बनाते हैं ना, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि, है ना, हाउ डू यू थिंक ओवर क्वेश्चन, क्योंकि कंटेंट इज नॉट ए बिग इशू फॉर यू गाइस, क्योंकि, है ना, कंटेंट सर ने डिटेल में कराया, है ना, वी हैव व्हाट एवर वी हैव डिस्कस, है ना, तो उसमें आई थिंक कंटेंट में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है क्या, है ना, आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, यस सर। Yes, sir. या हाँ अदर्स, है ना। तो इस प्रकार से ना क्वेश्चन कॉपी में जो नोट्स हुए लिखा गया ना कंटेंट, उसको कैसे यूज करना है, दैट इज आवर टारगेट, कि अल्टीमेटली व्हाट एवर कंटेंट यू हैव दैट इज मोर देन एनफ, कोई अलग से बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है। ओनली थिंग इज जीएस के कुछ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स, उसको इनकॉर्पोरेट करना है स्पेशली, है ना, जब एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, है ना, नए नए स्कीम पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक। सर हाँ हाँ प्लीज। सर आंसर्स लिखने टाइम पे मैंने एक और बात ऑब्जर्व करी है। बेसिकली हाँ कॉपी वैल्यूएशन में क्या होता है, हम जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट, हाँ हाँ तो हमने मेजोरिटी पार्ट क्वेश्चन का कवर कर दिया, बट द फैक्ट इज दैट सर, मैं बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया है कि देयर इज अ सम इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन दैट वी मिस टू राइट, राइट। एक तो स्टेटमेंट जो दे रखी है, ठीक है, हम उसके रिलेटिवली उससे रिलेटेबल और एस्पेक्ट्स को मेंशन कर रहे हैं, बट देयर आर सम इम्प्लिसिट पार्ट which we forget to write or which we actually don't know, और या फिर हमें उस लाइन ऑफ थिंकिंग हमें पता नहीं है। तो वो सर मेरी कॉपीज में थोड़ा बहुत पहले तो आता था, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, बट इट इज स्टिल प्रेवलेंट। आई जस्ट वांटेड टू नो कि सर वो इम्प्लिसिट पार्ट को हम किस तरीके से डिसाइफर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो नहीं पूछा बट स्टिल इट इज रेलेवेंट फॉर द क्वेश्चन, राइट हाउ राइट। जैसे इसमें ना एक तो ये एस्पेक्ट हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो स्टेटमेंट, कई लोगों स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है ना। दूसरा क्या है कि कई लोग कॉन्टेक्स्ट या बेसिक्स को नहीं लिखते हैं, जब भी हम आंसर देखते हैं कि कई बार, है ना, जल्दी के चक्कर में क्या होता है, बेसिक्स उस पे जो, है ना, या कॉन्टेक्स्ट को मिस आउट कर देता है। तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, बेसिक्स हो गए, या स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है ना, वो पार्ट कई बार कई आंसर में मिसिंग होता है। तो ये जो इम्प्लिसिट पार्ट है ना, दिस इज द बेसिक इम्प्लिसिट। और दूसरा जो फ्यूचरिस्टिक हमने बात किया ना, या कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट से लिंक करना, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है ना। फोर्थ है, एक तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना, दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीफली बेसिक्स कंटेंट लिख दो और बाकी मेन डिमांड हो गया, फिर लास्ट में हमको क्या आना चाहिए, कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट विथ रिगार्ड टू दैट कॉन्सेप्ट, या करंट इवेंट में करंट स्टेटस क्या है उस आइडिया का, या करंट डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे लिंकेजेस का, पेपर 2 से भी लिंकेजेस का ऑप्शन होता है। नहीं बेसिक्स हो गया। सर, हाँ जैसे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1B में आपने बोला था कि whether do you think that the meaning of public administration has been changed, सो ये स्टेटमेंट में लिखा नहीं हुआ, बट आपने वो सोचा, आपने वो मतलब कोई कोई थॉट प्रोसेस आपका चला होगा जिस पे आपने वो इम्प्लिसिट पार्ट सोचा। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो कैसे डिसाइफर करेगी, वेदर डू मतलब उस एस्पेक्ट को कैसे वहां तक जाए, कितना डेप्थ में हम जा सके सर, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं देखो वही तो बोले ना, क्वेश्चन जब देखो ना, उसको हम फटाफट WH जो बोलते हैं ना, व्हाट व्हाई हाउ, ये सब कौन कौन सा रेलेवेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड कमांड, जो कीवर्ड्स है ना, टेलवर्ड्स है, उसके हिसाब से कौन कौन हाउ फिट हो रहा है, व्हाई फिट हो रहा है, हाउ फिट हो रहा है ना, हैज इट रियली चेंज, हाउ इट हैज चेंज, व्हाई इट हैज चेंज, is it uniform, और हैज इट बीन तो क्या है, काउंटर क्वेश्चंस है ना, काउंटर क्वेश्चंस है आस्क करना है, स्पेशली क्रिटिकल एग्जामिन वाले क्वेश्चन में, या फिर उसको जो WH वाला कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं ना, वहां फिर क्वेश्चन का जो डिमांड और कमांड है, उसको हम लोग जस्ट ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। ये क्या होता है कि कई बार हमको लगता है कि ऐसे कर सकते थे लेकिन आंसर शीट में नहीं था,
है ना, कई बार ऐसा भी होता है। तो इसमें यही अप्रोच वही है कि आपको जब प्रैक्टिस ब्रेन स्टॉर्मिंग का हमने बात किया ना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यही करना है, आपको जितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछना है। इससे क्या होता है, एक तो आपका एनालिटिकल स्किल्स और है ना एबिलिटी टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स वो बढ़ता है। दूसरा क्या है कि आपने कई सारे डायमेंशन और एस्पेक्ट को भी डिस्कवर कर लेते हो जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है ना। वही कुछ इम्प्लिसिट पार्ट हुआ, थॉट प्रोसेस, क्योंकि कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, इट इज देयर इन योर माइंड, है ना। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर इन्वोकिंग योर थॉट्स, है ना, हाउ यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू मेक योर थॉट्स कम टू द आंसर शीट्स। ठीक है, तो वो आपको करना बहुत जरूरी है कि एक तो क्वेश्चन पढ़ना, रीइंटरप्रेट करना क्वेश्चन को, और अलग अलग एस्पेक्ट को हाईलाइट करना। आर यू एबल टू गेट इट? यस सर, और सॉरी सर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा नहीं हूँ नहीं, कोई अगेन, ना, आज लेकिन आज आज ओपन एंडेड, अदर्स आल्सो, आई थिंक आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। आज थोड़ा हम भले है ना क्वेश्चन से ज्यादा आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, है ना, थोड़ा आप लोग को भी समझना कहाँ कहाँ इश्यूज है। अदर्स आल्सो, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, सर एनी? आई हैव हाँ अ डाउट सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। सर करंट इवेंट्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, लाइक आप करंट, अभी बोले ना कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं हाँ बोले। जैसे ही अब ये ना अपन क्या डिबेट किए, जैसे ग्लोबलाइजेशन का है, तो ब्री यस एग्जिट हम लोग किस में पढ़ते हैं, है ना, या ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन का जो अमेरिका फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो जीएस में पढ़ते हैं ना। यस सर। ये करंट का कंटेक्स्ट हो गया, तो हम लोग डिटेल में वहां नहीं करते हैं, लेकिन अपन यहाँ करंट से लिंक कर दिया। या फिर जो गुड गवर्नेंस का हमने एग्जांपल देखा, स्वच्छ भारत अभियान है, ये तो पेपर 1 के चैप्टर 1 में तो आपने पढ़ा नहीं होगा ना, है ना। यस दिस यस इज नॉट नॉर्मली टॉट, लेकिन दिस इज द आइडिया, गवर्नेंस का आइडिया तो बहुत पॉपुलर है। अब एग्जांपल स्कीम पॉलिसी है, या इंक्लूसिव जो टर्म्स इसलिए बोला गया, गुड गवर्नेंस के जितने की फीचर्स हैं, यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 1-2 गुड एग्जांपल, या कुछ इंडिसेस ले आओ। अकाउंट ट्रांसपेरेंसी है ना, इंटरनेशनल का रिपोर्ट है ना। करप्शन या फिर इनइक्वालिटी जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है, रूल ऑफ लॉ पे भी इंडिसेस आता है, जस्टिस रिपोर्ट है, कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये सारे एग्जांपल ना जीएस है, यही करंट है ना। जो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक आप एनपीएम में क्या करंट होगा, एनपीएम में जो उस समय का इवेंट होगा वो लिखना है। अब पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट है, उसमें हम करंट को काफी लिंकेज ला सकते हैं, करंट इनिशिएटिव जो है ना। कुछ जैसे अब डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, उसमें करंट कुछ नहीं, डेफिनेशन तो फिक्स है, बेसिक है, उसमें चेंज जो डायनेमिक एस्पेक्ट आता है ना, उस पे हम लोग करंट से लिंक कैसे कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, ओके सर। ठीक। बट हाँ पर्टिकुलरली कैसे पता चलेगा सर, लाइक इसमें ही ऐसे करंट लिंक हाँ, करना है? वो हम लोग ना जैसे अभी डिस्कस करेंगे ना, टॉपिक वाइज जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें ना ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ये सब तो पूरा जीएस से काफी लिंकेज होगा, जैसे कंटेंट ना, यस है ना, तो उससे नहीं भी ये आइडिया तो लग। हाँ, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है सर। बिल्कुल पर्टिकुलरली बिल्कुल। जो पबेड में रहता है उसके हाँ साथ लाइक न्यूज़पेपर पढ़ के और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते अच्छा, हैं? हाँ ठीक है, एक न्यूज़पेपर को भी कैसे है ना यूज या करें, यस सर। वेरी हाँ गुड, है ना। तो अब क्या होता है न्यूज़पेपर में, स्पेशली जो एडिटोरियल सेक्शन है ना, एडिटोरियल में क्या है ना, मोस्टली पेपर 2 के कई सारे कंटेंट आपके वहां से तैयार होते हैं। यस सर। पेपर 2 का जितना टॉपिक है ना, एक तो जब न्यूज़पेपर पढ़ो ना, एक सामने तो अपना हर किसी को सिलेबस तो होता ही पेपर 1 और पेपर 2 का। तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल अगर कई टॉपिक तो डायरेक्टली लिंक होता है, एडिटोरियल से डायरेक्टली है ना, लिंकेज विद द सिलेबस है, या पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं उस पे। ठीक है, जैसे मान लो सीजीआई इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ गया, सीएजी पे आ गया, या है ना फाइनेंस कमीशन पे डिबेट आ गया, चीफ जुडिशरी को वर्किंग पे डिबेट आ गया। तो दीज आर डायरेक्टली, है ना, ये सब हमारे लिए गोल्ड माइंस। तो ऐसे एडिटोरियल्स के जो कीवर्ड्स होते हैं, है ना, देयर आर सम कीवर्ड्स, जैसे विक्टिम सेंट्रिक, है ना, जुडिशियल सिस्टम है, या फिर जो मतलब, या फिर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल, ये सब डायनेमिक एस्पेक्ट, क्योंकि ये चेंजिंग है। एक बार जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसा हर साल हो रहा है, हर महीने हो रहा है। मोर एंड मोर लेटेस्ट एग्जांपल यू ऐड इन द आंसर, है ना। अभी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब करंट में जो चल रहा है 1-2 साल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जुडिशियल एक्टिविज्म का, पीआईएल का, है ना, उसी तरह इलेक्शन कमीशन में क्या क्या जब डेवलपमेंट हुआ, तो दीज आर करेंट एस्पेक्ट, है ना। या गवर्नेंस इनिशिएटिव में क्या क्या लेटेस्ट में करें, जो एग्जांपल हमने स्वच्छ भारत ये सब दिया, ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट है। 90s में भी बहुत सारे इनिशिएटिव होगा, है ना, 2000 में भी बहुत सारे इनिशिएटिव, लेकिन एग्जांपल क्या दे रहे हैं, करंट के एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिंक इट विद द सिलेबस, और अगर डायरेक्टली लिंक वाला आता है तो ऐसे कीवर्ड्स को फिल्टर करना जरूरी है, और ऐसे एडिटोरियल को आप एक फाइल बना के सेव भी कर सकते हो, है ना। तो दिस टू, एक तो ऐसे एडिटोरियल इकट्ठा करके, और दूसरे कीवर्ड्स को फिल्टर करके रिलेट करना है सिलेबस में। क्या प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम क्या है ना,
जो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स का कंटेंट है हम लोग आंसर शीट में क्यों नहीं ला पाते? मेजर रीजन इज वी हैव नॉट वर्कड ऑन द लिंक डेवलपिंग इंटरलिंकेजेस, है ना, या उसको हमने जो भी एक न्यूज़पेपर में है ना कई सारे कंटेंट है, लिंक इट टू द सिलेबस, है ना, सिलेबस से लिंक करना, उसके अंदर कैटेगराइज। देखो ये भले थोड़ा टीडियस काम होगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे देखना हर सिलेबस के टॉपिक के नीचे आपके बहुत सारे कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे जो आपको एकदम बिल्कुल डायनेमिक बना देगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। ये जो लिंक, हाँ प्लीज प्लीज Sorry, sir. Is it possible for you to please share some articles that you feel is relevant to the PubAt syllabus, हाँ so हाँ that at least we डेफिनेटली, get an idea about how to यस go यस, about doing it? हाँ हाँ, तो व्हाट यू नो, Right. देखो एक तो क्या है ना कि एक तो सर जो है करंट अफेयर्स है ना मॉड्यूल निकालते हैं पबेट के लिए, अगर है ना लुकमान आईएएस में निकालता है, डू आर यू अवेयर ऑफ इट? Okay, no, sir, I wasn't aware of it. हाँ, देयर आर सॉफ्ट कॉपी एंड विल बी शेयरिंग इट, तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स हैव बीन एडेड इन दैट, है ना। हाँ हाँ प्लीज। Okay, sir. सर वो Thank जो you, sir. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स होते हैं सर, वो डॉक्यूमेंट देख के थोड़ी घबराहट सी हो जाती है। बहुत बड़ा है सर। हाँ तो ठीक है, तो और एक तो वहां पे इशू आता है, और वो क्या है ना रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे मान लो पवन सर है ना, पवन जी सर का सर, ऑफिशियल ग्रुप है, तो डेली बेसिस पे वो ना कई सारे आर्टिकल शेयर करते हैं। आर यू इन जी दैट ग्रुप? सर। सम ऑफ नो यू माइट बी इन दैट So ग्रुप। I am there, but usually there are a lot of other messages there all the तो time. जस्ट फोकस You ऑन द सर, filter है ना। out a lot of हाँ तो nonsense वहाँ there. प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे लोग ने इतने सारे है ना आर्टिकल वार्टिकल डाल देता है, अब जस्ट सर्च पवन, है ना, पवन सर के नाम से या जो भी है ना, एक जो पोस्ट आता है डेली मॉर्निंग में देखोगे, है ना, सर का अलग अलग न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स लाते हैं, नॉट ओनली हिंदू एक्सप्रेस, कई सारे और आर्टिकल्स आते हैं, है ना, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Okay, अब sir. उसमें Thank you, क्या sir. होता है, उसमें ना अब जैसे एक तो भाजीराम में है ना राजेश सर थे, वो तो प्रॉपरली चैप्टर 1 है ना टॉपिक ये करके अब तो बंद कर दिया उन्होंने, तो वो एक कैटेगराइज करके भी बांटते देते थे, है ना। 2000 आई थिंक 2023 तक का, 22 तक का तो है So ना। 22 के बाद उन्होंने कुछ अपलोड ही नहीं किया वहां पे, हाँ I यू think. आर आल्सो अवेयर, वेरी गुड, है ना, 2022 नवंबर के बाद उन्होंने शेयर करना, है ना, मे बी यू नो देयर माइट बी समथिंग, So तो ही इज he's नॉट, not teaching in Vajiram also now. हाँ That's ही इज why नॉट maybe. अर्लियर। अब वो होता है ना Yes. कि जब यूज था तो है ना ही यूज टू शेयर, है ना, उसका पर्सनल उनका चैनल था, है ना। इफ यू आई विल जस्ट शेयर इट ना सो दैट यू कैन आल्सो गो थ्रू द सम ऑफ द प्रीवियस आर्टिकल्स, सो दैट यू गेट एन आइडिया, ठीक है। मैं उस लिंक का ना चैनल का लिंक भेजता हूँ सबको, तो यू सर, कैन, हाँ हाँ प्लीज। तो वैसे अगर GS2 के लिए या गवर्नेंस के लिए if you are tracking the newspaper and relating it with the static, I think that would suffice for the public administration because यस, एंड पबेड का भी कंटेंट जीएस को सफिशिएंट, कई लोग तो obviously, अगर पबेड पढ़ लिया ना तो जी जीएस जी 2 और जीएस 3 तो अगर कोर स्पेसिफिक पार्ट ना पढ़ के भी जीएस 4 का भी है ना ऑलमोस्ट 50% तैयार हो जाता है, और जीएस 2 का तो गवर्नेंस ववर्नेंस पॉलिटी का भी मेजर सेक्शन अपन कवर कर ही लेते हैं। yes sir. वही कीवर्ड्स जब बनाते हैं ना, और मैंने बोला ना कुछ कुछ स्पेस है ना, पूरा कॉम्पैक्ट नोट नहीं बनाने का, शॉर्ट नोट, थोड़ा स्पेस रखना ताकि जीएस के जो कुछ एग्जांपल इनिशिएटिव्स है ना वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो यू शुड बी एबल टू है ना ब्रिंग जीएस को पबेट से लिंक और पबेट को जीएस से लिंक अगर कर पाए तो दैट विल बी ना, उसका रिवीजन भी आसान हो जाता है कीवर्ड्स का, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं 2 चैनल ऐड कर दूंगा आज राजेश सर का भी, ताकि प्रीवियसली सर ने जो जिस प्रकार डिवाइड किया ना टॉपिक्स को, यू गेट एन आइडिया, है ना, 1-2 साल पहले तक का, जस्ट यू कैन हैव ए ग्लिम्स ऑफ इट। दूसरा है पवन सर का, है ना, और तीसरा है अपना लुकमान आईएएस का जो ये जो ईयरली आता है करंट अफेयर्स का पबेट के लिए, है ना, वो मटेरियल भी अपन शेयर कर देंगे, तीनों है ना, दीज विल बी एनफ टू एनालाइज, क्योंकि एक बार आइडिया लग जाएगा तो यू कैन यू नो टेक फिल्टर इट, विल इट बी ओके? ओके सर। Yes sir, yes Yes, sir. Thank you. thank you, sir. ओके, तो इसके अलावा और कोई है ना कुछ शेयर करना, कुछ डिस्कस करना हो? ठीक है ना, तो जस्ट 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट 10 मार्क्स वाले कंप्लीट कर लेते हैं अपन, फिर है ना। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है ना, थर्ड वी हैव डिस्कस आई थिंक, यस। फोर्थ क्वेश्चन इज द कंसर्न्स टू एस्टैब्लिश एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मेड विड्रो विल्सन कंपैरेटिव इन आउटलुक। अब देखो विड्रो विल्सन का जो कंटेक्स्ट था, है ना, अब जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ यू, ना आई हैव टेकन ए टाइम मशीन, आप सबको विड्रो विल्सन के टाइम ले गया था, एंड ऑल ऑफ यू जस्ट इमेजिन यू आर द विड्रो विल्सन, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके अंदर का क्या माइंड प्रोसेस या थॉट प्रोसेस क्या था? अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करना था? इम्प्रूव करना था, एफिशिएंट बनाना था। 3 E's का जो कॉन्सेप्ट बात करता है, बिजनेस लाइक अप्रोच या डोकोटोमी जो लेके आया, है ना, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे बने,
है ना, दैट वाज द कंसर्न। अब उसके बाद वो देखा कि भाई ये जो यूरोपियन कंट्री है, मोनार्कियल सिस्टम है, वहां पे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेटर है। क्यों बेटर है? तो ऑब्वियसली उसने क्या किया कि भाई हाँ, वहां पे जो बेस्ट मॉडल है, बेस्ट तरीके हैं, है ना, वी शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट। क्योंकि देखो, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पे नॉर्मली क्या दे बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में रिफॉर्म लाना डिफिकल्ट था। तो ही वाज वेरी ओपन, लिबरल, ओपन टू लर्निंग फ्रॉम अदर सिस्टम। ही वांटेड टू इम्प्रूव, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए उसको एथनोसेंट्रिक भी बोलते हैं, है ना। एथनोसेंट्रिक और क्या रीजन है, जो कल्चरल लेंस का बात उन्होंने किया। ठीक है, कल्चरल लेंस मतलब दैट शुड बी इकोलॉजिकली, है ना, सेटिंग, उस सेटिंग में काम करे। तो कंपैरेटिव बनाने का जो इलूसिडेट है, सिंपल इसको, तो कंसर्न टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज फर्स्ट पार्ट। एज ए होल यू शुड बी एबल टू लिंक इट एज ए होल, एक आइडिया ये है। मेड विड्रो विल्सन कंपैरेटिव इन आउटलुक। तो व्हाई, है ना, क्यों? क्योंकि वहां के सिस्टम ने स्पॉइल सिस्टम है, मेरिट बेस्ड। तो डेमोक्रेसी में देखा गया तो रिफॉर्म लाना मुश्किल है। अब मोनार्कियल सिस्टम है, वहां पे क्या अच्छा है, क्यों है अच्छा? क्योंकि आसानी होता है, अपोजिशन कम होता है। तो अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा, ये जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे, है ना, वो कॉन्टेक्स्ट आ गया। एंड व्हाई ही बिकेम कंपैरेटिव, दिस इज द मेजर पार्ट। उसको हमको ओपन अप करना है। ठीक है, ओपन अप कैसे होगा? एक तो है कि भाई आपको कोई भी, अगर आप थिंकर बनते हो या एकेडमिशियंस बनते हो, यू हैव अ क्यूरियोसिटी कि भाई बाकी देश में क्या चल रहा है ना। अपने देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खराब है या बाकी और कंट्री में भी खराब है, या कहीं अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कहीं खराब है तो क्यों खराब है। तो दिस इज हाउ यू डेवलप क्यूरियोसिटी। जैसे कई सारे स्टेट गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, क्यों कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो वी डेवलप दैट क्यूरियोसिटी। तो ही वाज, यू नो, ही वांटेड टू इम्प्रूव। अब क्या कि ऑलरेडी वहां पे कई सारे बैलेंस, ये सब का जो हमने नोट्स में भी देखा, देयर वर थिंकर्स बिफोर। अगेन यू कैन लिंक द आइडिया ऑफ थिंकर्स बिफोर विल्सन वाला जो सर ने लिखा है ना कंटेंट, अगेन यू कैन लिंक इट। कि ऐसा नहीं कि विल्सन वाज ओनली द, कंट्रीब्यूटर या फाउंडर। उसके अलावा कई सारे वैलेंसी जैसे थिंकर्स थे, दिए, शेप्ड द आइडिया ऑफ, विड्रो विल्सन। ठीक है, तो एक तो वो भी है ना, थिंकर बिफोर वाला आ गया। उसके बाद उसका कंपैरेटिव, जैसे प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, मोनार्कियल सिस्टम, आसान, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लोगों को सप्रेस करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना जरूरी था, है ना। तो वहां पे एफिशिएंट अगर सिस्टम नहीं होगा तो मोनार्की को तो ओवरथ्रो कर देगा। तो अगर राजा ने कुछ बोला, मोनार्क ने कुछ बोला, तो उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करना, इसलिए वो वेरियन ब्यूरोक्रेसी देख रहे यूरोपियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो कंटिनेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बोलते हैं, या ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। दीज आर द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फ्रैंको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो अब अल्टीमेटली ये जो अदर प्रैक्टिसेस है ना, ऑब्जेक्टिव वही था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या करना है, इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे होगा? या तो अपने देश में कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस है जो उसने सिटी गवर्नेंस से सीखा। सिटी गवर्नेंस में क्या मैनेजरियल ऑटोनॉमी की बात था, या बिजनेस लाइक अप्रोच की बात था, है ना, मेरिट बेस्ड सिस्टम लाने की बात हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वो तो इंटरनल कंट्री से भी कुछ सीखा, कुछ बाहर से भी सीख रहा है। कंपेरेटिव अप्रोच लाएंगे तो हम बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, उसको हम लोग लेके आएंगे। लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी में डिफिकल्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस था, है ना, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हमको अल्टीमेटली क्या है कि यूएसए के अंदर, है ना, यूरोपियन सिस्टम से इंप्रूव करने का जरूरत, उसको रियलाइजेशन हुआ। ही थॉट कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो कई सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको फर्स्ट कंपैरेटिव या ओरिजिनेटर ऑफ कंपैरेटिव पवेड भी बोलते हैं। तो वही अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे रिफॉर्म किया जाए। उसको रिफॉर्म तभी आएगा ना जब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एक तरफ है ना यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मान लो। अब दोनों में पॉजिटिव निगेटिव कंपेयर करके देख रहे हैं, अपने पॉजिटिव ठीक है, निगेटिव को ओवरकम कर दे रहे हैं, या इसके पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं, जो अच्छा है उसको ले जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ ही वाज एबल टू ब्रिंग द गुड फीचर्स ऑफ अमेरिकन। तो अब उसमें एक इशू आया था कि भाई वो उसने ब्लाइंड इमिटेशन, जैसे इंडिया में क्या होता है नॉर्मली, वही है ना, कॉपी पेस्ट करना एकदम बहुत मस्त आता है, कॉपी पेस्ट कर दिए, ब्लाइंड इमिटेशन कर दिए। तो ही वाज नॉट, है ना, ही ब्लाइंड इमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम दोनों कंट्री का अलग है, इसलिए कल्चरल लेंस का बात उसने किया। तो अब इसमें हम क्या है, थोड़ा एक दिखा रहे हैं कि कंपेरेटिव था, लेकिन ही वाज आल्सो कॉशियस, है ना। वाज ही ओपन, है ना, कि हर चीज को इम्प्लीमेंट कर दो। कंपेरेटिव में कॉशियस भी था, कल्चरल लेंस आना चाहिए, एथनोसेंट्रिक भी था। ठीक है। तो रिमार्क वही बोला कि भाई आपको जो है, मतलब जो बाहर से मॉडल्स लाने हैं, दैट शुड बी सूटेड टू द इकोलॉजिकल कंडीशन, कल्चरल एस्पेक्ट,
तो ये हमको दिखाना है। तो व्हाई ही बिकेम कंपैरेटिव, की टर्म्स, एक तो कंटेंट आएगा, थिंकर बिफोर विल्सन वाला कंसेप्ट। दूसरा है कि है ना नए बेस मॉडल लाना है, तो कंपैरेटिव से अपन नए नए सिस्टम ला सकते हैं। अमेरिका के अंदर भी क्या सिस्टम प्रॉब्लम था कि भाई टू मच है ना, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी सब पे ज्यादा फोकस था, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं था। लेकिन जो मोनार्कियल सिस्टम है वहां पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, फिलोसफी है नहीं, वहां सीधा फोकस किस पे है, इम्प्लीमेंटेशन पे है। इसलिए वहां पे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो कैन वी लर्न समथिंग। अब लेकिन लर्न करते समय जो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस लाना है, तो अपने कल्चरल लेंस को ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद अब ये कंक्लूजन एक ब्रॉडर व्यू क्या आता है कि भाई वो तो कंसर्न वो था, रिफॉर्म लाना चाह रहा था, ओपन आउटलुक भी था, ब्रॉडर भी था, लेकिन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, इकोलॉजिकल वही एक आप कल्चरली रूटेड होना चाहिए, जो बाद में रिक्स से देखो कैसे कनेक्ट किया, इंटरलिंकेजेस जो अपन देखते हैं, दिस इज द इंटरलिंकेजेस 1960s को भी कैसे क्वेश्चन से लिंक किए, क्योंकि कंपैरेटिव पवेड आ गया ना, और वुड्रो विल्सन तो ओरिजिनेटर था, लेकिन बाद में जाके ये 1960s में हम देखते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनेगा, वो जाके रिक्स के अंदर बहुत सारा काम करता है। तो वो है ना वो आइडिया अल्टीमेटली अभी भी कंपैरिजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंप्रूव करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। क्योंकि देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट रन, व्हाई डू वी नीड द पबेड एज ए डिसिप्लिन। अब देखो बेसिक आइडिया क्या है, व्हाई डू यू नीड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, है ना, क्या क्या दिया, व्हाई वी नीड, हाउ है ना, व्हाट पबेड शुड डू एंड हाउ इट शुड डू। तो उसमें क्या, वाई वी नीड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, क्योंकि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, उसका काम क्या होगा, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, फिलोसफी बनाना, पॉलिसी बनाना, मेथड्स बनाना। दैट वाज द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन इटसेल्फ, है ना। तो डिसिप्लिन और एक तो टूल्स एंड टेक्निक्स, वो तो बेसिक आइडिया हो गया जो डिस्कस किया, है ना। लेकिन अब ये कंपेरेटिव बनने का रीजन क्या था, तो इसमें देखो इतने पैराग्राफ सर है ना, हमने जैसे या सर ने जो बताया पैराग्राफ जो लिखा है, इसमें एक है कि इसके दो तीन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या क्या है, क्या क्या कीवर्ड हमने देखा, पहला था थिंकर्स बिफोर विल्सन, वहां से कंटेंट आएगा, है ना, विड्रो विल्सन के पहले थिंकर हो गया। दूसरा क्या है कि जो मोनार्कियल सिस्टम वर्सेस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का डिबेट था, ठीक। उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो जर्मन में जो एड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस था। फोर्थ कंपोनेंट है इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट, यानी जो कल्चरल लेंस का बात किया, दीज आर द की टर्म्स, है ना, थिंकर बिफोर विल्सन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इकोलॉजिकल, कल्चरल लेंस, है ना। फिर जाके कंपैरेटिव को जो छिपा है, छिपा क्या है, कंपैरेटिव पवेड ऐड का भी कंटेक्स्ट आपको आइडिया, अल्टीमेटली कंपैरिजन क्यों हो रहा है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बने, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट। तो दिस इज द, है ना, लेटर पार्ट में जो रिक से कनेक्ट किया गया, दिस इज द हाउ यू इंटरलिंक विद द अदर थिंकर आल्सो। ओके, इज इट क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन सिंपल इलुसिडेट करना है, इसलिए यहाँ पे हम अलग अदर पर्सपेक्टिव, काउंटर पर्सपेक्टिव, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, ही जस्ट ओरिजिनेटर बट लेटर ऑन, है ना। मेन कंट्रीब्यूशन तो रिक्स और बाकी थिंकर्स को बोलते हैं, लेकिन विड्रो विल्सन तो ओरिजिनेटर है, उसका देखो क्रिटिसिज्म पे हम फोकस नहीं किए, सिंपल उसको इलुसिडेट कर दिए। ठीक है, आर यू ऑल एबल टू गेट इट, या इज इट क्लियर, एनी डाउट। यस सर। ओके, ठीक है। अब अगला है डिस्कस द रेलेवेंस, है ना। अब क्या होता है, ये जो नस्पा एस्टेब्लिश हुआ था, तो पवेड में आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है ना। 1960s में क्या देख रहे हैं, 50 से 70s का जो दौर था, है ना, जो क्रोनोलॉजिकली जो टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, इट इज एन एरा ऑफ क्राइसिस, है ना। आइडेंटिटी पवेड में, पवेड एज ए पॉलिटिकल साइंस, पवेड एज ए मैनेजमेंट साइंस, ये चल रहा है। अब उसमें 1970s में उसका रेलेवेंस, डिस्कस द रेलेवेंस, तो इसमें सिंपल डिस्कस करना है कि भाई ये जो अपन वहां पे भी नस्पा का एस्टेब्लिश से क्या पवेड के फील्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो एक तो ये है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है, व्हाई इट इज कंसीडर एज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि नस्पा के पहले ओरिजिन से लेकर नस्पा तक, या पोस्ट नस्पा 1970 क्या रहा डेवलपमेंट। ठीक है, तो 1970 में एस्टेब्लिश हुआ, और देखते 1970 बिगिंस द न्यू पैराडाइम, पवेड एज पवेड, है ना। तो इसने क्या किया, एक तो एकेडमिक जो उसका नेटवर्क ऑफ स्कूल, बेसिक आइडिया क्या है कि भाई एक ग्रुप ऑफ स्कूल कॉलेजेस ये सब जहां जहां पवेड 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए गए, दिस इज द बैकग्राउंड, है ना। और वो मास्टर डिग्री ये सब देना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा, एकेडमिक रिसर्च, एक्सेप्टेंस ऑफ पवेड एज ए डिसिप्लिन, इट विल इंक्रीज, देयर विल बी मोर एंड मोर रिसर्च, है ना। तो ये रिकॉग्नाइज ग्लोबल बॉडी भी बन गया मास्टर डिग्री देने के लिए। तो एक तो एक डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन किया। बैकग्राउंड क्या है कि आइडेंटिटी क्राइसिस 40s वाला, सेम कंटेंट, यू नो, there is no difference in the content, only thing is you have to mold based on the demand of the question, और उस कंटेंट को यूज कैसे करना है। ट्रोजेक्टरी है तो वहां पे भी सर ने ना बता रखा है
किस प्रकार से जो पवेड का जो ट्रेजेक्टरी किस प्रकार से है ना, पहले क्लासिकल फेज पीक पे जाता है ना, जो अपन जो एरा ऑफ ऑर्थोडॉक्सी जेनिथ और रेपुटेशनल जेनिथ बोलते हैं, तो 1930s जो प्रिंसिपल एरा है ना, सेकंड पैराडाइम, उसमें देखते पीक पे जाता है, धीरे धीरे आइडेंटिटी क्राइसिस आते आते 60s में लो पे पहुंच जाता है, 70s में वापस से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। एक तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्फ्रेंस हो गया, कई सारे अल्टरनेटिव स्कूल, पब्लिक चॉइस, न्यू राइट फिलोसफी, ये सब गया। फिर पवेड को एक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया, यहाँ से पवेड का कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो दिस इज द ईयर व्हेन नस्पा वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिए। फिर रेलेवेंस क्या है, एक तो है ना कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जेनरिक पॉइंट्स भी है, जैसे मान लो कॉन्फिडेंस बूस्टर है स्कॉलर्स के लिए, ये सबको पता है, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाने के लिए जरूरत है ना। उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट साइंस भी जो कर रहा था, नहीं नहीं पवेड जो है पॉलिटिकल साइंस है, पवेड क्या मैनेजमेंट साइंस, उसको भी काउंटर किया। फिर उसको रिनाइसा, देखो अब ये निकोलस हैंडी का व्यू है, दिस इज न्यू टर्म दैट यू आर गेटिंग हियर, इट इज नॉट इन योर क्लास नोट्स, है ना। तो ये क्लास नोट्स में मेंशन नहीं है। या फिर एक जेनरिक आइडिया, ये सब तो क्या है ना जेनरिक आइडिया, दिस ऑल यू कैन मेक इट आउट, लेकिन ये स्पेसिफिक कंटेंट यहाँ पे जैसे निकोलस हैंडी है ना, इसको नस्पा को कैसे है ना रिनाइसा पवेड बोला, है ना। तो इसमें एक और दूसरा क्या है, नस्पा का बिगिनिंग ऑफ पैराडाइम, ये सबको पता है। वही आर्टिकुलेशन है ना, कई बार नीड टू आर्टिकुलेट, है ना, लैकिंग इन आर्टिकुलेशन। तो वो जो कमेंट्स आता है बेसिकली इसके लिए कि आर्टिकुलेट करना है, कंटेंट तो वही है, लेकिन हाउ डू यू आर्टिकुलेट एंड ब्रिंग आउट द पॉइंट्स, ठीक है। तो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट है, एमपीए मास्टर डिग्री है, सब जो देना। डिस्कस पार्ट में क्या बताया गया कि आपको जो देखो नस्पा क्या है, अभी तक फोकस किस पे था, मतलब डिस्कस में थोड़ा लिमिटेशन भी हाईलाइट कर दिए कि मोर इन द, है ना, डेवलप वर्ल्ड में ओनली, ठीक है। तो ग्रेजुएट कहाँ, वेस्टर्न कंट्री में, बाकी डेवलपिंग कंट्री में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो स्टिल अभी तो डिसिप्लिन का इमरजेंस एज ए डिसिप्लिन तो चैलेंज अभी भी है ना, पवेड एज ए डिसिप्लिन स्टिल वी डोंट एक्सेप्ट। तो दो इट हैज बूस्टेड बट स्टिल फुल फ्लेज रिकॉग्निशन, जो कुहानियन स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था लैकिंग है, जो टेबल बनाया था नोट्स में भी कि है ना सब्जेक्ट मैटर है, ओरिजिनलिटी है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, एकेडमिक रिकॉग्निशन, तो वो सारा कहीं ना कहीं लैकिंग है, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग इट। तो है ना, ऑल ऑफ यू आर पवेड स्कॉलर्स, यू आल्सो फील कि पवेड एज फुल फ्लेज क्यों हर कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, यू आल्सो गेट टू नो अरे पवेड इसका मतलब कहीं ना कहीं फुल फ्लेज डिसिप्लिन की तरह अब तक स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्रिटिसाइज किया, डिस्कस पार्ट में क्या कर रहे हैं, उसके लिमिटेशन को हाईलाइट किए, क्रिटिसिज्म भी दिखाया, अदर पार्ट जो हमने निगेटिव या लिमिटेशन बताया। उसके बाद लेकिन कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन तो पॉजिटिवली कंक्लूड करना है। एक पॉजिटिव क्यों, क्योंकि है ना पैराडायग्मेटिक बैलेंस लेके आया, क्योंकि पवेड है, जो पवेड आ गया, ठीक, सेमिनल है पवेड के लिए। और ये अल्टीमेटली जो बाद में जो कोड ऑफ एथिक्स और एनपीए सब, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन होता है उसका एक प्रोफेशनल कोड, जो प्रोफेशनल एक कोड होना चाहिए और एकेडमिक डिसिप्लिन कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, तो अडॉप्ट किया गया नस्पा के द्वारा कि किस प्रकार से। तो अब यहाँ पे क्या देखे, डिस्कस पार्ट से देखे लिमिटेशन आ रहा है ना, लिमिटेशन यानी जो अपन प्रोज एंड कॉन्स, निगेटिव पॉजिटिव जो बोलते हैं, डिस्कस में क्या होता है ओपन एंडेड, जब भी अपन डिस्कस करते हैं क्या करते हैं, सारे एस्पेक्ट हाईलाइट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, लिमिटेशन, वीकनेस और रेलेवेंस। तो डिस्कस द रेलेवेंस, लिमिटेशन हाईलाइट करते हुए अल्टीमेटली क्या नस्पा का कंट्रीब्यूशन टू द पवेड। तो ये एक आपके नोट्स का एक पार्ट था, उसके आपको रिलेट करना है, कई सारे मैक्रो टर्म्स, मैक्रो आइडिया, दिस इज अगेन जेनरिक कंटेंट दैट यू नो, इसमें भी जेनरिक कंटेंट है, बस एक नया टर्म आ गया आपको, निकोलस हैंडी का स्टेटमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस हमने डिस्कस कर रखा है। नस्पा के बारे में जो बेसिक्स है ना, कई लोग ये बेसिक्स नहीं लिखते आंसर, है ना। अगर नस्पा वाला क्वेश्चन आया होगा तो मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉट द कंटेंट, है ना, कमेंट लाइक कि बेसिक्स ऑन नस्पा मिसिंग इन द आंसर। ये बेसिक क्या है, जनरल अवेयरनेस, है ना। नस्पा पे सर ने ऐसे ब्रीफली बताया भी था क्लास में कि है ना हाउ, जब हम डिसिप्लिन का डिबेट करते हैं ना, हाउ पवेड एज ए डिसिप्लिन इमर्ज और ये हुआ, तो वो चैलेंजेस में वो हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आर यू ऑल एबल टू गेट इट, बाकी कल देखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, विल कंक्लूड, है ना, बिकॉज यू नो इट इज ऑलरेडी गेटिंग लेट। तो okay, we'll meet, and in case if still you face some doubt you can message me, or you can put it in the groups also, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, we'll discuss the later later questions, we'll Yes, sir. conclude by tomorrow, okay। So कल थोड़ा speed up करेंगे क्योंकि things are already repeated, things are being repeated, ठीक है। सर कल PYQ सेशन मिलेंगे आप? पीवाईक्यू वेडनेसडे को देखते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे 11 to 1 का जो स्लॉट है ना उस पे प्लान जी। कर रहे हैं। हाँ मोस्टली पीवाईक्यू सेशंस विल बी ऑन द वेडनेसडे इन द डे टाइम, and recording will be done so that you get the recordings also,
ठीक है. Okay. Okay. Good night, everyone. Good night, sir. Thank you. Okay. Good night, sir. Good night.